بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس کہانی کے پہلے پارٹ نہیں دیکھے تو ہمارے چینل میں جا کر پہلے اس کہانی کے پہلے حصے دیکھ لیں اور سن لیں، اس کے بعد یہ کہانی آپ کو سمجھ آئے گی۔ چلتے ہیں بقایا کہانی کی طرف۔ حسن نے سر نیچا کر لیا اور بلک بلک کر رونے لگا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ بڑھیا برابر اس کے منہ پر پانی چھڑکتی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو بڑھیا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے آقا، اپنے وطن کو لوٹ جا۔ اگر میں تجھے شہر میں لے گئی تو تیری بھی جان جائے گی اور میری بھی، کیونکہ اگر ملکہ کو اس کی خبر ہو گئی تو مجھے برا بھلا کہے گی کہ میں تجھے اس کے ملک میں کیوں لائی۔ آج تک کوئی آدم ذات اس کے جزیروں میں نہیں پہنچا ہے۔ وہ مجھے اس جرم میں قتل کر ڈالے گی کہ میں تجھے اپنے ساتھ لائی اور تجھے ان باکرہ لڑکیوں پر نظر ڈالنے دی جنہیں تو نے دریا میں دیکھا ہے، کیونکہ ابھی تک نہ کسی غیر مرد نے انہیں چھوا، نہ کوئی شوہر ان کے پاس بھٹکا ہے۔ حسن نے قسم کھائی کہ میں نے انہیں بری نظر سے ہرگز نہیں دیکھا۔ بڑھیا بولی، بیٹا، بہتر ہے کہ تو اپنے وطن کو لوٹ جا، اور میں تجھے اتنا مال و دولت اور تحفے تحائف دوں گی کہ تجھے کسی عورت کی پرواہ نہ رہے گی۔ میرا کہنا مان لے اور جانے میں دیر نہ کر، اپنی جان پر نہ کھیل، بس یہی میری نصیحت ہے۔ بڑھیا کی باتیں سن کر حسن رو پڑا اور اپنا منہ اس کے قدموں سے رگڑنے لگا اور کہا، اے میری آقا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ کر بے اسے دیکھ کے چلا جاؤں جس کی تمنا میں آیا ہوں۔ اس وقت میں اپنے محبوب کے گھر کے قریب ہوں اور امید ہے کہ اس کا دیدار جلد نصیب ہو اور ممکن ہے کہ وہ مجھے مل جائے۔ بڑھیا کو اس پر رحم آ گیا اور وہ اس کی طرف مخاطب ہو کر اسے دلاسا دینے اور اس سے کہنے لگی کہ خوش ہو جا اور غم کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ خدا کی قسم، میں تیری خاطر اپنی جان لڑا دوں گی، تیری مراد پر آئے گی یا میری جان جاتی رہے گی۔ یہ سن کر حسن کی باتیں کھل گئیں اور وہ شام تک بیٹھا بڑھیا سے باتیں کرتا رہا۔ جب دن چھپ گیا تو سب لڑکیاں چلی گئیں، بعض اپنے محل میں جو شہر میں تھا اور بعض نے خیموں میں رات بسر کی۔ اب بڑھیا حسن کو ساتھ لے کر شہر میں گئی اور اسے اکیلا ایک مکان میں اتارا، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ اگر ملکہ کو اس کی خبر ہو گئی تو اسے بھی قتل کر ڈالے گی اور اس کے لانے والے کو بھی۔ بڑھیا خود اس کی خدمت کرتی اور اسے ملک اکبر کے دبدبے سے ڈراتی رہتی، جو اس کی بیوی کباب تھا اور سب جنوں کا سردار تھا۔ اور وہ بڑھیا کے آگے رو رو کر کہتا، اے میری آقا، میں نے تو اپنے لیے موت پسند کر لی ہے۔ اگر میں اپنی بیوی بچوں سے نہ مل سکا تو اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، یا تو میں اپنی مراد پوری کر کے رہوں گا یا جان دے دوں گا۔ بڑھیا سوچ میں پڑ گئی کہ اس کے وصال کی کیا تدبیر نکلے اور اسے اس کی بیوی سے کیوں کر ملایا جائے، اور ایسے ضدی کا کیا علاج ہو جس نے اپنی جان تباہی میں ڈال رکھی ہے۔ کسی ڈرانے دھمکانے پر بھی اپنے مقصد سے بات نہیں آتا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ مثل ہے کہ عاشق اس شخص کی بات نہیں سنتا جسے عشق نہ ہو۔ وہ لڑکی اس جزیرے کی ملکہ تھی جہاں یہ سب آ کر اترے تھے، اور اس کا نام نور الہدا تھا۔ اس ملکہ کی 7 بہنیں تھی اور سب کنواری، اور اپنے باپ ملک اکبر کے ساتھ رہا کرتی، جو واق کے جزیروں اور ملکوں کا بادشاہ تھا، جس میں بہت سارے جنات، دیو، پرید اور بہت سے جادوگر تھے۔ اس بادشاہ کا پائے تک اس ملک کا سب سے بڑا شہر تھا۔ جس شہر میں اس وقت حسن تھا، اس پر اور اس کے گرد و نواح پر بادشاہ کی بڑی بیٹی نور الہدا کی حکومت تھی۔ جب بڑھیا نے دیکھا کہ حسن اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے تو وہ نور الہدا کے محل میں جا کر اس سے ملی اور اس کے آگے زمین چومی۔ بڑھیا کا اس پر حق تھا، کیونکہ اسی نے بادشاہ کی سب بیٹیوں کی پرورش کی تھی اور سب پر حکم چلاتی تھی۔ اس کی عزت لڑکیاں بھی کرتی تھی اور بادشاہ بھی۔ جب بڑھیا نور الہدا کے پاس پہنچی تو اس نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر سفر کا حال پوچھا۔ بڑھیا نے کہا، ہے میری آقا، سفر بڑا مبارک رہا اور میں اپنے ساتھ تیرے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں جسے ابھی پیش کروں گی۔ یہ کہہ کر بڑھیا بولی، ہے میری بیٹی اور دنیا جہاں کی ملکہ، میں اپنے ساتھ ایک عجیب و غریب چیز لائی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اس سے تجھے مطلع کر دوں تاکہ تو اس کی حاجت روائی میں مدد کر سکے۔ ملکہ نے پوچھا، وہ کیا؟ بڑھیا نے حسن کی کہانی شروع سے لے کر آخر تک سنا دی، اور ایسا کام بھی جیسے آندھی میں بید، یہاں تک کہ وہ شہزادی کے آگے گر پڑی اور کہنے لگی، ہے میری آقا، وہ شخص ایک چوکی کے نیچے چھپا بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے پناہ کی درخواست کی، میں نے اسے پناہ دی اور اس کے ہتھیار لگا کر اس طرح اپنے ساتھ لڑکیوں کے لشکر کے ہمراہ لے کر شہر میں لائی کہ کسی نے اسے پہچانا تک نہیں۔ میں نے اسے تیرے دبدبے سے بہت ڈرایا، تیری قوت اور طاقت اسے جتلائی، لیکن جب میں اسے ڈراتی تو وہ روتا اور کہتا کہ بغیر بیوی بچوں کے میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، مر جاؤں گا لیکن خالی لوٹوں گا نہیں۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر
जज़ायर वाक़ आया है। उम्र भर मैंने इससे ज्यादा मजबूत और कवि दिल आदमी नहीं देखा। उसके सिवा उसके दिल में बेहद इश्क समाया हुआ है। मलिका ने बुढ़िया की बातें सुनी और हसन का माजरा वो देश में आ गई और सर नीचा कर लिया। थोड़ी देर के बाद उसने नजर उठाई और बुढ़िया की तरफ देख कर कहा, ए मनहूस बुढ़िया, कि तेरी बदजाती इस हद तक बढ़ गई कि तुम मर्दों को जज़ायर वाक़ में मेरे पास लाती है और मेरे दबदबे से बिल्कुल नहीं डरती। बादशाह के सर की कसम, अगर मेरे ऊपर तेरी तरबियत का हक न होता और तेरी इज्जत मुझ पर वाजिब न होती तो मैं तुझे और उसे अभी बुरी तरह कत्ल कर देती, ताकि ये मलूना आने जाने वाले लोग इबरत पकड़ते और कोई ऐसा काम न करता जैसा कि तूने किया है और जिसकी जुरात आज तक किसी को नहीं हुई। जा और उसे फौरन ले आ ताकि मैं उसे देखूं। बुढ़िया उसके पास फौरन से रवाना हो गई, लेकिन हैरान थी। उसकी समझ में न आता था कि कहाँ जाए और दिल में कह रही थी कि ये सारी बला जो खुदा उस मलिका के हाथ से मेरे ऊपर ला रहा है हसन की वजह से है। जब वो हसन के पास पहुंची तो उसने कहा, चल मलिका बुलाती है, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ पहुंचा है। हसन उठकर उसके साथ चल खड़ा हुआ, लेकिन उसकी जुबान पर बराबर खुदा के नाम की तस्बीह थी और वो कह रहा था, खुदावंदा मेरे ऊपर रहम और मुसीबत में मेरी मदद कर। बुढ़िया हसन को लिए हुए मलिका नूरुल हुदा के पास पहुंच गई, लेकिन राह में उसे समझा दिया था कि वो मलिका के साथ किस तरह से बातें करे। जब हसन नूरुल हुदा के सामने हाजिर हुआ तो देखा कि वो निकाब डाले हुए है। हसन ने उसके आगे जमीन चूमी और सलाम किया। मलिका ने बुढ़िया की तरफ इशारा किया कि वो हसन से सवाल जवाब करे। बुढ़िया ने हसन से कहा कि मलिका तेरे सलाम का जवाब देती है और पूछती है कि तेरा क्या नाम है, वतन कहाँ है और जिन बीवी बच्चों की खातिर तू आया है उनका क्या नाम है। ये सुनकर उसका दिल मजबूत हो गया और तकदीर ने उसकी मदद की। उसने जवाब दिया, ये दुनिया जहाँ की मलिका और सारे जमाने की यकता, मेरा नाम गमगीन हसन है, मेरा वतन बसरा है। अपनी बीवी का नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बेटे का नाम नासिर और दूसरे का मंसूर है। उसका ये जवाब सुनकर मलिका ने कहा, वो कौन सी जगह थी जहाँ से वो अपने बेटों को लेकर उड़ गई। हसन ने कहा, ये मलिका बगदाद में खलीफा के महल से। मलिका ने पूछा कि उसके उड़ते वक्त तुम में से किसी से कुछ कहा भी था। हसन ने जवाब दिया, तो वो मेरी माँ से कह गई है कि जब तेरा बेटा आए और जुदाई की वजह से उसके दिन कठिन होने लगे और उसे मेरी मुलाकात की तमन्ना हो और इश्तियाक हद से बढ़ जाए तो वो मेरे पास जज़ायर वाक़ आ जाए। मलिका नूरुल हुदा ने अपना सर हिलाया और कहा कि अगर वो तुझे ना चाहती होती और तेरे मिलने की तमन्ना उसे न होती तो वो अपने मकान का पता तुझे न बताती और तुझे अपने वतन न बुलाती। हसन ने कहा, बादशाहों के सरताज और हर अमीर व गरीब के हाकिम, सारी बातें मैंने तुझसे बयान कर दी हैं और कोई राज बाकी नहीं रखा। अब मैं खुदा से और तुझसे पनाह की दरख्वास्त करता हूँ कि मुझ पर जुल्म न कर, बल्कि रहम कर और मेरी वजह से अजर और सवाब हासिल कर। बीवी बच्चों से मिलने में मेरी मदद कर और उनका दीदार मुझे दिखा दे। ये कहकर वो रोने पीटने और फरियाद करने लगा। मलिका नूरुल हुदा देर तक आंखें नीचे किए अपना सर हिलाती रही और फिर सर उठाकर कहने लगी कि मैं तेरे हाल पर रहम खाती और तुझ पर अफसोस करती हूँ और मैंने पक्का इरादा कर लिया है इस शहर और बाकी तमाम जजीरे की लड़कियां तेरे सामने पेश करूं। अगर तूने अपनी बीवी को पहचान लिया तो उसे तेरे सुपर्द कर दूंगी और अगर न पहचाना तो तुझे कत्ल करके किसी बुढ़िया के दरवाजे पर लटका दूंगी। हसन ने कहा, ये सारी दुनिया की मलिका, तेरी ये शर्त मुझे मंजूर है और सिवा खुदा के और किसी में न ताकत है न जोर। अब मलिका नूरुल हुदा ने हुक्म साजिर कर दिया कि शहर की हर लड़की महल में आकर उसके सामने से गुजरे और बुढ़िया शिवाही से कहा कि तू खुद शहर में जाकर हर लड़की को मेरे पास महल में लिया। मलिका लड़कियों को सो कर हसन के आगे पेश करती, यहाँ तक कि शहर की कोई लड़की न बची जो हसन के सामने पेश न की गई हो, लेकिन उनमें कोई भी उसकी बीवी न निकली। मलिका ने पूछा, उन लड़कियों में तूने अपनी बीवी को देखा? हसन बोला, मलिका तेरी जान की कसम उनमें से कोई भी नहीं। उस पर मलिका का गुस्सा और तेज हो गया। उसने बुढ़िया से कहा कि महल के अंदर जाकर सबको निकाल ला और उसके आगे पेश कर। बुढ़िया ने सब लड़कियों को उसके सामने पेश किया जो महल के अंदर थी, लेकिन हसन को अपनी बीवी उनमें भी दिखाई न दी और उसने मलिका से कहा, मलिका तेरे सर की कसम वो उनमें भी नहीं है। मलिका गुस्से में भर गई और आसपास के लोगों को पुकार कर कहा कि उसे पकड़कर जमीन पर घसीटो और उसकी गर्दन मार दो ताकि फिर कोई अपनी जान पर खेलकर यहाँ ना आए, हमारे हाल से आगाही न पाए, हमारे मुल्क में दाखिल ना हो और हमारे जजीरों में कदम न रखे। लोगों ने उसे मुंह के बल घसीटा, उसका दामन उसके ऊपर डालकर उसकी आंखें बांध दी, तलवारें ले लेकर उसके सर पर खड़े हो गए और हुक्म का इंतजार करने लगे। इतने में शिवाही ने मलिका की तरफ बढ़कर जमीन चूमी, उसका दामन अपने सर पर रख लिया और कहने लगी, मलिका तुझे मेरी तरबियत की कसम इतनी जल्दी न कर, खासकर जबकि तू जानती है कि ये बेचारा परदेसी है और चांद पर खेल कर आया है।
اس نے ایسی ایسی مصیبتیں جھیلی ہیں جو کسی نے بھی نہ بھگتی ہوں گی، مگر خدا نے اسے موت سے بچا لیا ہے اور اس کی عمر بڑھائی ہے۔ تیری انصاف پسندی سن کر وہ تیرے ملک اور وطن میں آیا ہے۔ اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو مسافر اس خبر کو لے کر دور دور پہنچا دیں گے کہ تو پردیسیوں سے بغض رکھتی ہے اور انہیں قتل کر ڈالتی ہے۔ اگر اس کی بیوی تیرے شہر میں نہ نکلی تو وہ یوں بھی تیری تلوار کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اول تو جب کبھی تو اسے بلانا چاہے تو میں اسے لا سکتی ہوں، دوسری یہ بھی سمجھ لے کہ محض تیرے احسان کی امید میں نے اسے پناہ دی ہے، کیونکہ میری تربیت کا حق تیرے اوپر ہے اور میں نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ تو اس کے مقصد تک پہنچا دے گی۔ تیرے انصاف اور مہربانی کا مجھے یقین ہے۔ اگر مجھے تیری طرف سے ان باتوں کا یقین نہ ہوتا تو میں اسے کبھی تیرے شہر میں نہ لاتی۔ پھر مجھے تو گمان تھا کہ تو اسے دیکھ کر خوش ہوگی، اس کے اشعار اور باتوں کو پسند کرے گی جو ایسے ہیں جیسے پروئے ہوئے موتی۔ اور اب تو وہ ہمارے ملک میں آ گیا ہے، اس نے ہمارا کھانا کھایا ہے، ہم پر اس کا حق ہو گیا ہے، اور میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ اسے تجھ سے ملاؤں گی۔ تو جانتی ہے کہ جدائی کتنی کٹھن چیز ہے، اور تجھے معلوم ہے کہ جدائی قاتل ہے، خاص کر اولاد کی جدائی۔ اب عورتوں میں سے سوا تیرے کوئی باقی نہیں رہا، تو بھی اپنا چہرہ اسے دکھا دے۔ ملکہ نے مسکرا کر کہا کہ وہ کہاں سے میرا شوہر ہو سکتا ہے اور مجھ سے اولاد پیدا کر سکتا ہے کہ میں اسے اپنا چہرہ دکھاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے حسن کو بلوایا، اور جب لوگ اسے لے کر آئے تو اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ اسے دیکھتے ہی حسن نے زور سے چیخ ماری اور گشکا کر گر پڑا۔ بڑھیا اسے برابر پیار کرتی رہی یہاں تک کہ اسے ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ملکہ کو دیکھ کر اس نے پھر اس زور سے چیخ ماری کہ قریب تھا کہ محل گر پڑے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ بڑھیا پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور جب اسے ہوش آیا تو بڑھیا نے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ یا تو یہ ملکہ خود میری بیوی ہے یا تمام لوگوں سے زیادہ میری بیوی سے مشابہت رکھتی ہے۔ ملکہ نے بڑھیا سے کہا، اے ماما، افسوس ہے کہ یہ پردیسی یا تو پاگل ہے یا کوئی فیلیا، کیونکہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھتا ہے۔ بڑھیا بولی، اے ملکہ، وہ معذور ہے، اس لیے اس کے کسی فعل کا برا نہ مان۔ مثال ہے کہ محبت کا بیمار لادوا ہوتا ہے، اس میں اور دیوانے میں بالکل فرق نہیں ہوتا۔ اب حسن بلک بلک کر رونے لگا اور ملکہ سے کہا کہ خدا کی قسم، تو میری بیوی تو نہیں ہے لیکن میری بیوی سے بے حد مشابہت رکھتی ہے۔ اس پر ملکہ نور الہدیٰ ہنستے ہنستے لوٹ گئی اور کہنے لگی، میرے پیارے، تو مجھے خوب دیکھ بھال لے اور میرے سوال کا جواب دے، دیوانے پن اور بھولے پن کو جانے دے، تجھے جلد خوشی حاصل ہوگی۔ حسن نے کہا، اے بادشاہوں کی سرتاج اور امیروں غریبوں کی پناہ، جب میری نظر تجھ پر پڑی تو میں دیوانہ ہو گیا، کیونکہ یا تو خود میری بیوی معلوم ہوتی تھی یا میری بیوی سے بے حد مشابہ۔ اب جو تو چاہتی ہے پوچھ۔ ملکہ بولی کہ تیری بیوی کس بات میں میرے مشابہ ہے؟ وہ بولا، اے میری آقا، تیری تمام چیزیں اس سے مشابہت رکھتی ہیں، مثلا حسن و جمال اور خوب روئی، شان و شوکت، سڈول بدن، شیریں کلامی، رخساروں کی سرخی اور سینے کا ابھار وغیرہ وغیرہ۔ اب ملکہ نے شواہی ام الدعائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اسے پھر تو اپنے گھر لے جا اور خود اس کی خدمت کر، میں اس کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اگر وہ مروت والا نکلا جو دوستی، صحبت اور محبت کی پاسداری کرتا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اس کے حاجت روائی میں مدد کریں، خاص کر اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ملک میں آیا ہے اور ہمارا کھانا کھایا ہے۔ علاوہ بری اس نے سفر کی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور خطرے جھیلے ہیں، لیکن اسے اپنے گھر پہنچا کر نوکروں کے حوالے کر دیجیے اور جلدی سے میرے پاس لوٹ آئیے، خدا نے چاہا تو اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ سن کر بڑھیا نے حسن کو ساتھ دیا اور گھر پہنچ کر اپنی کنیزوں، غلاموں اور نوکروں چاکروں کو حکم دیا کہ اس کی خدمت کرے اور جس چیز کی اسے ضرورت ہو مہیا کرے اور اس کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اس کے بعد وہ فوراً ملکہ کے پاس پہنچی۔ ملکہ نے حکم دیا کہ وہ فوراً ہتھیار لگائے اور بہادروں میں سے 1000 سوار چن لے۔ بڑھیا شوائی نے حکم کی تعمیل کی اور زرے بختر پہن کر 1000 سوار لے آئی۔ جب اس نے ملکہ کے پاس آ کر خبر دی کہ میں 1000 سوار لے کر آئی ہوں، ملکہ نے حکم دیا کہ میرے باپ ملک اکبر کے شہر میں جا اور وہاں پہنچ کر اس کی بیٹی منار السنا کے ہاں اتر، جو میری سب سے بڑی بہن ہے، اور اس سے کہیو کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو وہ زرہ پہنا کر جو اس نے ان کے لیے بنائی ہے اپنی خالہ کے پاس بھیج دے، کیونکہ اس کا جی انہیں دیکھنے کو چاہتا ہے۔ اور اے بڑھیا، میں تجھے مشورہ دیتی ہوں کہ حسن کا نام ہرگز نہ لیجیو، بلکہ تو انہیں لے چکے تو میری بہن سے کہیو کہ وہ بھی آ کر مجھ سے مل جائے۔ جب وہ اپنے دونوں بیٹے تجھے دے دے اور تو انہیں لے کر میری طرف روانہ ہو تو انہیں بہت جلد لے کر یہاں آ جائیو اور ان کی ماں کو اطمینان سے تیاری کرنے دیجیو، اور جس راہ سے تو گئی ہو اس سے نہ لوٹیو، دن رات سفر کیجیو اور اس رات کو کسی سے نہ کہیو۔ اس کے بعد میں ہر طرح کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ اگر میری بہن اس کی بیوی نکلی اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے دونوں بیٹے حسن کے بیٹے ہیں
मैं हरगिज़ उससे इस बात से न रोकूंगी कि वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर चली जाए, बल्कि उसकी मदद करूंगी वो उसे लेकर अपने वतन चला जाए। बुढ़िया समझी कि वो सच कहती है, पर उसकी उसे खबर न थी कि उसके दिल में क्या खोट है। उस शातिर ने अपने दिल में ये बात छुपा रखी थी कि अगर वो उसकी बीवी ना होगी और बच्चे उसके मुशाबा ना होंगे तो वो उसे कत्ल कर देगी। उसके बाद मलिका ने बुढ़िया से कहा, अगर मेरा दिल सच कहता है तो उसकी बीवी मेरी बहन मनार अल सना है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। जो कुछ वो कहता है वो मेरी बहन की तारीफ है, और जो जो खूबसूरती और खूब रूई उसने बयान की है वो सिवा मेरी बहनों के और किसी में पाई नहीं जाती, खासकर सबसे बड़ी बहन में। बुढ़िया ने उसका हाथ चूमा और हसन के पास जाकर जो कुछ मलिका ने कहा था बयान कर दिया। मारे खुशी के हसन दीवाना सा हो गया और उठकर बुढ़िया का सर चूमने लगा। बुढ़िया बोली, बेटा मेरे सर को न चूम, बल्कि मेरे मुंह को और उस बोसे को अपनी सलामती का सदका समझ। खुश हो और गम को अपने दिल में ना आने दे, और मेरा मुंह चूमने से कराहियत न कर, क्योंकि तेरे मिलाप का सबब मैं ही हूँ। ये कहकर वो उससे रुखसत हुई और हथियार लगाकर 1000 मुसल्लह सवारों को लेकर उस जजीरे को रवाना हो गई जहाँ मलिका की बहन थी। नूरुल हुदा और उसकी बहन के शहर में 3 दिन की राह थी। शहर में पहुंचकर शिवाही मलिका की बहन मनार अल सना के पास गई। उसे सलाम करके उसकी बहन नूरुल हुदा का सलाम पहुंचाया और उससे कहा कि तेरी बहन तुझे और तेरे बच्चों को देखने की मुश्ताक है और तेरी मुलाकात न होने की वजह से सख्त परेशान है। शहजादी मनार अल सना ने कहा, मेरी बहन का मुझ पर हक है और मैं उससे न मिलने की कसूरवार हूँ। अब जरूर जाकर उससे मिलूंगी। ये कहकर उसने हुक्म दिया कि खेमे शहर के बाहर निकाले जाए और अपने साथ अपनी बहन के लिए तोहफे और हदिये लिए। जब उसके बाप बादशाह ने महल की खिड़कियों में से देखा कि खेमे लगे हुए हैं तो उसने उसका सबक दरियाफ्त किया। लोगों ने कहा कि शहजादी मनार अल सना अपनी बहन नूरुल हुदा की मुलाकात के लिए जाना चाहती है। यह सुनकर बादशाह ने उसके लिए एक लश्कर तैयार करा दिया जो उसे उसकी बहन के पास पहुंचाए और अपने खजानों में से इतना माल, खाने पीने की चीजें, ऐसे ऐसे तोहफे, तहफ और जवाहरात निकाल कर दिए कि जुबान उसकी तारीफ नहीं कर सकती। सिवा बड़ी के बादशाह की 6 बेटियां सगी बहनें थी। बड़ी बहन का नाम मनार अल सना था, दूसरी का नजमुल सबा, तीसरी का शमसुद्दोहा, चौथी का शजरुल दरा, पांचवी का कुव्वतुल कलूब, छठी का शफरुल बनात और 7वीं का नूरुल हुदा। मनार अल सना ये सबसे बड़ी, यही हसन की बीवी और महज बाप की तरफ से उनकी बहन थी। बुढ़िया ने बढ़कर मनार अल सना के आगे जमीन चूमी। मनार अल सना ने पूछा, क्या तुझे कोई जरूरत पेश आई है? बुढ़िया ने जवाब दिया, तेरी बहन नूरुल हुदा ने तुझे यह पैगाम दिया है कि अपने दोनों बेटों के कपड़े बदलकर उन्हें वो जरहें पहना दे जो तूने उनके लिए बनाई है और उन्हें मेरे साथ रवाना कर दे। मैं उन्हें लेकर आगे आगे चलूंगी और जाकर नूरुल हुदा को तेरे आने की खुशखबरी दूंगी। ये सुनकर मनार अल सना ने सर झुका लिया। उसका रंग बदल गया और बड़ी देर तक सर झुकाए बैठी रही। फिर उसने सर को हिलाया और बुढ़िया की तरफ देखकर कहा, बड़ी भी, अपने बेटों का नाम सुनकर मेरा दिल कांप रहा है और घबरा रहा है, क्योंकि जब से वो पैदा हुए हैं न किसी जिन ने उन्हें देखा है, न किसी बशर ने, न औरत ने, न मर्द ने, बल्कि मैं उन्हें हवा भी नहीं लगने देती। बुढ़िया ने कहा, है मेरी आका, ये तू कैसी बातें करती है? क्या तू उनके बारे में अपनी बहन से भी डरती है? इस बात में तेरी मुखालफत नहीं चल सकती कि वो तुझसे नाराज हो जाएगी, लेकिन ए मेरी आका, तेरे बच्चे छोटे हैं और उनके बारे में तेरा डरना बजा है। मोहब्बत करने वाला हमेशा बदगुमान होता है। मगर बेटी, तू जानती है कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को कितना चाहती हूँ। मैंने तुझे भी पाला है और उनको भी। मैं खुद अपने साथ उन्हें लेकर जाऊंगी, अपनी आंखें उनके लिए बिछाऊंगी और अपना दिल खोलकर उसके अंदर उन्हें जगा दूंगी। इन बातों में तेरी ताकीद की जरूरत नहीं। तू डर नहीं, अपनी आंखें ठंडी रख और उन्हें उनकी खाला के पास जाने दे। ज्यादा से ज्यादा हमारा 1 दिन या 2 दिन का आगा पीछा होगा। गर्ज के उसने इतनी खुशामद की कि लड़की का दिल नरम हो गया। वो अपनी बहन के गुस्से से डरती भी थी, लेकिन उसे ये खबर न थी कि गैब में उसके लिए क्या पोशीदा है। इसलिए वो बच्चों को बुढ़िया के साथ भेजने पर राजी हो गई और बच्चों को बुलवाकर उन्हें गर्म पानी से नहलाया, उनका बनाव श्रृंगार किया, कपड़े बदले और जिरहें पहनाकर बुढ़िया के हवाले कर दिया। बुढ़िया उन्हें लेकर उड़ी और जैसा कि मलिका नूरुल हुदा ने उससे कहा था, उस रास्ते से न आई जिससे उनकी माँ आने वाली थी। वो बहुत तेज रवाना हुई क्योंकि वो उनके बारे में डरती थी। यहाँ तक कि वो नूरुल हुदा के शहर में पहुंची और दरिया पार करके उसके पास जा उतरी और बच्चों को उसके सामने पेश कर दिया। मलिका उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें लिपटाया, चिपटाया, गले लगाया और एक को दाएं रान पर और दूसरे को बाईं पर बिठाया। उसके बाद उसने बुढ़िया से कहा, आप हसन को बुला ला, मैं उससे वादा कर चुकी हूँ और अपनी तलवार से उसे पनाह दे चुकी हूँ। बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलने के बाद उसने हमारे घर में आकर पनाह ली है।
اگرچہ ابھی بھی یہ یقین نہیں ہے کہ وہ موت کا جام پینے سے بچ گیا ہے۔ بڑھیا بولی کہ جب میں حسن کو تیرے پاس لاؤں گی تو کیا تو اسے ان سے ملا دے گی، اور اگر یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے تو اسے اس کے وطن واپس بھیج دے گی۔ یہ سن کر ملکہ کو تیش آ گیا اور وہ کہنے لگی، منحوس بڑھیا، کب تک اس پردیسی کے بارے میں تو چال بازیاں کرتی رہے گی جو ہمارے ملک میں زبردستی گھسایا ہے، ہماری پردہ دری کرتا ہے اور ہمارے حالات سے واقف ہو گیا ہے؟ کہ تیرا خیال ہے وہ ہمارے ملک میں آئے، ہمارے چہرے دیکھے، ہماری عزت پر دبا لگائے اور پھر اپنے ملک کو صحیح سالم چلا جائے، وہاں جا کر اپنے لوگوں میں ہماری فضیحت کرے، ساری دنیا کے بادشاہوں میں ہمارا ڈنڈورا پیٹا جائے اور تاجر ہماری خبریں ہر جگہ پہنچائیں اور کہیں کہ ایک انسان جادوگروں اور کاہنوں کے ملک سے گزر کر ارض و جاں اور ارض و وحوش اور طیور سے ہو کر جزائر بھاگ گیا اور صحیح و سالم لوٹ آیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قسم ہے آسمان کے پیدا کرنے اور اس کے بنانے والے کی، اور زمین بچھانے اور برابر کرنے والے کی، مخلوق کے پیدا کرنے اور گننے والے کی، اگر وہ اس کے بچے نہ ہوئے تو میں اسے قتل کر دوں گی اور خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بڑھیا کو اس زور سے ڈانٹا کہ وہ مارے ڈر کے گر پڑی۔ ملکہ نے حاجب اور 20 غلاموں کو اس پر مسلط کر دیا اور ان سے کہا کہ اس بڑھیا کے ساتھ جا کر فوراً اس جوان کو لے آؤ جو اس کے گھر میں ہے۔ وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے اسے لے گئے۔ اس کا چہرہ درد پڑ گیا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ جب وہ گھر پہنچ کر حسن کے پاس گئی تو حسن نے اٹھ کر اس کے ہاتھ چومے، اسے سلام کیا، لیکن بڑھیا نے سلام کا جواب دینے کے بدلے اسے کہا کہ ملکہ کے پاس چل، میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اپنے وطن کو لوٹ جا، اور ان تمام باتوں سے روکا نہ تھا، لیکن تو نے میرا کہنا نہ مانا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تجھے اس قدر مال و دولت دوں گی جتنی کسی کے پاس نہ ہو، مگر تو نے نہ مانا، بلکہ سنا تک نہیں، میری مخالفت کی، مجھے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اب جیسی کرنی ویسی بھرنی، موت قریب آ چکی ہے، چل کر اس ظالم اور بدذات عورت سے باتیں کر۔ حسن رنجیدہ اور شکستہ دل ہو کر مارے ڈر کے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ بچانے والے خدا، مجھ کو بچا، خدا بندہ، جو امتحان تو میرا لے رہا ہے اس میں مہربانی سے پیش آئیو، اور یہ سب سے بڑے رحم کرنے والے، مجھے بچائیو۔ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ آخر غلاموں، حاجب اور بڑھیا کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ جب لوگ اسے لے کر ملکہ کے پاس پہنچے، اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے ناصر اور منصور اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہی ہے اور انہیں پیار کر رہی ہے۔ انہیں دیکھتے ہی حسن پہچان گیا اور اتنی خوشی ہوئی کہ زور سے چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو پہچان لیا اور وہ بھی باپ کو پہچان گئے تو ان کی فطری محبت جوش میں آئی۔ وہ ملکہ کی گود سے نکل کر حسن کے پاس آ کھڑے ہوئے اور خدا نے ان کی زبان سے یہ لفظ نکلوا دیے، اے ہمارے باپ۔ بڑھیا اور تمام حاضرین کو ان پر اتنا ترس آیا کہ سب رونے لگے اور کہا، شکر ہے خدا کا کہ اس نے انہیں باپ سے ملا دیا۔ گشی دور ہونے کے بعد حسن نے اپنے بیٹوں کو گلے سے لگا لیا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ بچے حسن کی اولاد ہیں اور اس کی بہن منار ثنا اس کی بیوی ہے جس کی تلاش میں وہ آیا ہے، تو اسے اپنی بہن پر اتنا غصہ آیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں، اور حسن کو اس زور سے ڈانٹا کہ وہ تھرا اٹھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ لوگ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر باہر ڈال آئے ہیں۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا چلنے لگا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا کہ میں ملکہ کی اظہار آسانی سے بچ جاؤں گا۔ اس پر بڑھیا شواہی کو بھی بڑا افسوس ہوا، لیکن ملکہ کے غصے کے ڈر سے وہ حسن کے بارے میں اس سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب حسن محل سے نکلا تو وہ حیران پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ زمین باوجود اتنی وسعت کے اسے تنگ معلوم ہوتی تھی۔ نہ کوئی باتیں کرنے والا اسے ملتا تھا، نہ دل بہلانے والا، نہ تسلی دینے والا، نہ رائے بتانے والا، اور نہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس جا کر وہ پناہ لے۔ اسے موت سامنے کھڑی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ نہ اس میں چلنے کی طاقت تھی، نہ کوئی اس کا ہم سفر تھا، نہ اسے راستہ معلوم تھا، نہ وہ وادی جنات، ارض و وحوش اور جزائر طیور سے گزر سکتا تھا۔ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اتنا رویا کہ غش آ گیا۔ ہوش آیا تو وہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی کی فکر میں پڑ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب وہ اپنی بہن کے پاس آئے گی اور نہ معلوم بہن اس کی کیا گت بنائے گی۔ یہ سوچ کر وہ پشیماں ہوا کہ میں کیوں اس ملک میں آیا۔ سمجھانے سے بھی کچھ نہ سمجھا، تاہم وہ برابر چلا گیا، یہاں تک کہ شہر کے باہر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ادھر اس کی بیوی منار ثنا کے ساتھ یہ پیش آیا کہ بڑھیا کے چلے آنے کے دوسرے روز جب کہ وہ سفر کرنے والی تھی، اس کے باپ بادشاہ کا حاجب اس کے پاس آیا اور اس کے آگے زمین چومی اور کہنے لگا، اے شہزادی، تیرے باپ ملک اکبر نے سلام بھیجا ہے اور تجھے بلایا ہے۔ شہزادی فوراً اٹھ کر حاجب کے ساتھ چل کھڑی ہوئی تاکہ دیکھے
कि उसका बाप क्या चाहता है। जब उसके बाप की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसे अपने पास तख्त पर बिठा लिया और कहा, बेटी सुन, मैंने रात एक ख्वाब देखा है जिसकी वजह से मुझे तेरे बारे में डर लगता है कि कहीं इस सफर में तुझे किसी बड़ी मुसीबत का सामना न करना पड़े। बेटी बोली कि अब्बा, तूने क्या ख्वाब देखा है? बादशाह ने जवाब दिया कि ख्वाब में मैं एक खजाने के अंदर दाखिल हुआ। देखा कि उसमें बहुत मालो दौलत और बेशुमार हीरे जवाहरात हैं, मगर उन तमाम मालो दौलत और हीरों में से मुझे महज 7 हीरे पसंद आए जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। मैंने उनमें से एक को छांट कर ले लिया जो सबसे बड़ा और खूबसूरत और चमकदार था। उसकी खूबसूरती मुझे इतनी भली मालूम हुई कि मैं उसे अपनी हथेली पर रखकर खजाने से निकल आया। दरवाजे के बाहर आकर मैंने अपना हाथ खोला और हीरे को उलट पलट कर देखने लगा। इतने में एक अजनबी चिड़िया जो हमारे मुल्क की चिड़ियों में से न थी बल्कि किसी दूर के मुल्क से आई थी, आसमान से मेरे ऊपर गिरी और मेरे हाथ से वो हीरा छपट लिया और जहां से आई थी चली गई। मुझे बहुत रंजो अफसोस हुआ और इतना डर लगा कि मेरी नींद उचट गई और मैं उस हीरे पर अफसोस करता हुआ उठ बैठा। नींद से उठकर मैंने ताबीर देने वालों को बुलवाया और उनके सामने अपना ख्वाब बयान किया। उन्होंने कहा कि तेरी 7 बेटियों में से सबसे बड़ी खो जाएगी और कोई शख्स उसे जबरन तेरी मर्जी बगैर ले जाएगा। बेटी, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है, सबसे ज्यादा प्यारी और अजीज। तू अपनी बहन के पास जा रही है, मालूम नहीं वहां तुझ पर क्या गुजरे। बेहतर है कि सफर से बाज आ और अपने महल में लौट जा। बाप की बातें सुनकर मनार सना का दिल धड़कने लगा और अपने बेटों के ख्याल में डूब गई। सर नीचा कर लिया। थोड़ी देर के बाद सर उठाकर बाप की तरफ देखा और कहने लगी, ये बादशाह, मलिका नूरुल हुदा ने मेरी दावत की तैयारी की है और वो मेरा इंतजार कर रही है। 4 साल से उसने मुझे नहीं देखा। अगर अब मैं उससे मिलने न गई तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मैं उसके पास 1 महीना ठहर कर लौट आऊंगी। ऐसा कौन हो सकता है तो हमारे मुल्क में आकर जज़ायर वाक तक पहुंच सके? और ये किसकी मजार हो सकती है कि अर्ज बीजा, जबल असवद, जजीरा काफूर और किला तयूर तक पहुंच जाए। वादी तयूर, फिर वादी वहूश, फिर वादी जिन्नात तय करके हमारे जजीरों में कदम रखे। और अगर कोई परदेसी मुल्क में दाखिल भी हो जाए तो वो खौफनाक समंदरों में डूब जाएगा। लिहाजा मेरे सफर के मुतालिक बिल्कुल परेशान ना हो। किसी की मजाल नहीं कि हमारे मुल्क में कदम रख सके। गर्ज के वो बराबर बाप को मनाती रही, यहाँ तक कि उसने सफर की इजाजत दे दी और 1000 सवारों को हुक्म दिया कि उसके साथ जाएं और उसे दरिया तक पहुंचा कर वहीं ठहरे। जब वो अपनी बहन से मिलकर लौटे तो फिर उसे अपने साथ ले आए। बेटी से उसने ये भी कहा कि अपनी बहन के पास 2 दिन ठहर कर फौरन लौट आइयो। उसने जवाब दिया कि सर आंखों पर। अब वो उठकर बाहर आई और बाप उसके साथ बाहर आकर उससे रुखसत हुआ। बाप की बातों का उस पर यह असर हुआ कि वो अपने बेटों के मुतालिक डरने लगी, मगर तकदीर के आगे कोई खबरदारी नहीं चलती। 3 दिन रात तेज चलने के बाद वो दरिया के पास पहुंची और उसके किनारे डेरे डाल दिए। वहां से वो चंद गुलामों, नौकरों और वजीरों को लेकर दरिया पार उतरी और मलिका नूरुल हुदा के शहर में पहुंचकर महल के अंदर गई। देखा कि उसके बेटे खाला के पास बैठे रो रहे हैं और अब्बा अब्बा चिल्ला रहे हैं। ये देखकर उसके आंसू निकल पड़े और वो रोने लगी। अपने बेटों को छाती से लगा लिया और उनसे पूछा कि क्या तुमने अपने बाप को देखा है? खुदा इस घड़ी का सत्यानाश करे जब मैं उससे जुदा हुई। अगर मुझे मालूम हो कि वो अभी तक दुनिया में है तो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगी। बच्चों को रोता देखकर और अपने शोहर का ख्याल करके वो आहजारी करने लगी। जब उसकी बहन ने देखा कि उसने अपने बच्चों को लिपटा लिया है और कह रही है कि मैंने अपने बेटों के साथ ये जुल्म किया है और अपना घर बर्बाद किया है, तो वे उसे सलाम किए कहने लगी, तेरी ये औलाद कहाँ से आई? क्या तूने बगैर बाप को खबर किए निकाह किया? अगर तूने जिना किया है तो तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, और अगर तूने हमसे छुपा कर निकाह किया है तो फिर तू अपने शोहर को क्यों छोड़कर अपने बच्चों को ले आई और उनमें और उनके बाप में जुदाई डालकर हमारे मुल्क में चली आई और उनमें और उनके बाप में जुदाई डाली और अपने बच्चों को हमसे छुपाए रखा? क्या तेरा गुमान था कि हमें उसकी खबर न होगी? गायबदान खुदा ने हमारे ऊपर तेरी बातें जाहिर कर दी, तेरा हाल खोल दिया और तेरे राज फाश कर दिए। ये कहकर उसने नौकरों को हुक्म दिया तो उसे पकड़ कर मेरे पास लाओ। जब वो पकड़ कर लाए तो मलिका ने उसकी मशकें बांधकर उसके पाँव में लोहे की बेड़ियां डाल दी। इतना मारा कि उसका बदन फट गया और उसके बाल पकड़कर खींचा और कैद खाने में बंद कर दिया और अपने बाप मलिक अकबर को खत लिखा जिसमें मनार सना का हाल बयान किया कि हमारे मुल्क में एक इंसान आया है। मेरी बहन मनार अल सना कहती है कि वो उसका शोहर है जिससे उसके 2 बेटे पैदा हुए हैं। उन्हें उसने हम सबसे और खासकर तुझसे छुपा रखा था। जब तक वो शख्स यहाँ ना आया बहन के मुंह से एक बात तक नहीं निकली। वो शख्स इंसानों में से है, उसका नाम हसन है। वो कहता है कि उसने उससे शादी की है और वो बहुत दिनों तक उसके साथ रही है।
फिर अपने बेटों को लेकर बे कहे चल दी और चलते वक्त उसकी माँ से कहती आई कि अपने बेटे से कह दीजिए कि अगर उसे मेरी तमन्ना हो तो जज़ायर बाग में आ जाए। उस शख्स को हमने पकड़ रखा है। और बहन के पास बुढ़िया शिवाई को भेजा, वो जाकर उसे और उसके बेटों को ले आए। अब वो यहाँ आ गई है। मैंने बुढ़िया को ये हुक्म दिया था कि वो बच्चों को लेकर आगे चली आए ताकि वो उससे पहले यहाँ पहुंच जाए। बुढ़िया बच्चों को लेकर यहाँ आई तो मैंने उस शख्स को बुलवाया जो उसके शोहर होने का दावा करता है। जब वो मेरे पास पहुंचा, उसने बच्चों को देखा तो उन्हें पहचान लिया। बच्चे भी उसे पहचान गए, जिससे मुझे यकीन हो गया कि वो बच्चे उसके बेटे हैं और वो उसकी बीवी है। और मुझे मालूम हो गया कि वो सच कहता है और उसकी तरफ से कोई बुरी बात नहीं हुई, बल्कि सारी बुराई और ऐब मेरी बहन का है। मैं डरी कि कहीं जजीरे वालों के आगे हमारी बेइज्जती न हो जाए, इसलिए जब ये दगाबाज लड़की मेरे पास पहुंची तो मैं उस पर सख्त नाराज हुई। उसे खूब मारा और उसके बाल बांधकर उसे लटका दिया। तुझे मैंने उसका सारा कच्चा चिट्ठा लिख दिया। हुक्म तेरा हुक्म है, जो तू हमें हुक्म देगा वो हम करेंगे। तुझे खूब मालूम है तो उसमें हमारी बड़ी बेइज्जती है और उससे हमारी और खास तेरी इज्जत पर धब्बा लगता है। अगर जजीरे वालों को इसकी खबर हो गई तो हम सब उनके लिए जरबल मिसल बन जाएंगे, इसलिए जरूरी है कि जवाब जल्द भेज। एक खत लिखकर उसने कासिद को दे दिया। वो उसे लेकर बादशाह के पास पहुंचा। खत पढ़कर मलिक अकबर तेज में आ गया और उसने अपनी बेटी नूरुल हुदा को यह जवाब भेजा कि मैं उसे बिल्कुल तेरे सुपर्द करता हूँ और उसके खून का तुझे हाकिम बनाता हूँ। अगर जैसा कि तूने लिखा है सच है तो बे मेरी राय लिए इसको कत्ल कर दे। जब ये खत उसके पास पहुंचा और उसने पढ़ा तो मनाल सना को अपने पास बुलाया। वो लहू में डूबी हुई थी, उसके बालों से उसकी मशकें बंधी हुई थी और पाँव में लोहे की भारी भारी बेड़ियां वो बालों के कपड़े पहने हुए थी। जब लोगों ने उसे लाकर मलिका के आगे खड़ा किया तो वो जिल्लत से खड़ी हो गई और अपने आप को इस जिल्लत और तौहीन की हालत में देखकर उस जमाने को याद करने लगी जब उसके दिन इज्जत से गुजरते थे और वो रोने लगी। शहजादी मनाल सना अपनी बहन नूरुल हुदा के सामने लाई गई तो उसकी मशकें बंधी हुई थी। बहन ने एक लकड़ी की टिकटिकी मंगवाकर उसे लिटाया और नौकरों को हुक्म दिया कि उसे पीठ के बल टिकटिकी से बांध दिया जाए और उसकी कलाइयां खींचकर रस्सियों से बांध दी जाए। उसके बाद उसने उसका सर खोलकर बाल टिकटिकी से बांध दिए। गर्ज के उसके दिल में मेहरबानी का नामो निशान तक बाकी न रहा। अपने आप को इस जिल्लत और तौहीन में देखकर मनार सना रोने पीटने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद को न आया। वो कहने लगी, बहन तेरा दिल क्यों इतना सख्त हो गया कि न तुझे मुझ पर रहम आता है न उन छोटे छोटे बच्चों पर। ये बातें सुनकर उसका दिल और सख्त हो गया। वो गालियां देने और कहने लगी, ए आशिका, ए रंडी, जो तेरे ऊपर रहम खाए खुदा उस पर रहम न खाए। ए दगाबाज, मैं तुझ पर क्यों कर तरस खा सकती हूँ। मनाल सना जो टिकटिकी से बंधी पड़ी थी कहने लगी, मैं आसमानों के खुदा से तेरे खिलाफ दुआई मांगती हूँ। मैं उस गुनाह से बरी हूँ जो तू मुझ पर लगा रही है। खुदा की कसम, मैंने जिना नहीं किया बल्कि हलाल तरीके से उसके साथ शादी की। खुदा ही जानता है कि मैं सच कहती हूँ या झूठ। तेरी सख्त दिली से मुझे तुझ पर सख्त गुस्सा आता है कि बेजाने बूझे तू मुझ पर जना का इल्जाम लगाती है। मेरा परवरदिगार मुझे तुझसे छुटकारा देगा और अगर तेरा जना का इल्जाम सही है तो खुदा मुझे उसकी सजा देगा। अपनी बहन की बातें सुनकर मलिका सोच में पड़ गई और कहने लगी, तू और मुझसे ऐसी बातें करे। साथ ही उसने उठकर बहन को मारना शुरू किया, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। लोगों ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश आया, लेकिन मार की वजह से उसकी सारी खूबसूरती ढल गई थी। नूरुल हुदा उस पर नाराज हो रही और उससे कह रही थी कि ए फाहिशा, तू मेरे सामने अपने गुनाहों का उज़र पेश कर रही है। मेरा इरादा है कि तुझे तेरे शोहर के पास भेज दूं ताकि तेरी बदकारी का मुशाहिदा करूं, क्योंकि तू उस पर फख्र करती है कि तुझसे बदकारी, बदफेदी और गुनाह सरजिद नहीं हुए। अब उसने गुलामों को हुक्म दिया कि वो ताड़ की छड़ी लाए। छड़ी आ गई तो उसने उठकर अपनी आस्तीनें चढ़ाई और सर से लेकर पांव तक उसे मारना शुरू किया। उसके बाद उसने एक गुंधा हुआ कोड़ा मंगवाया कि अगर उसे हाथी पर भी लगा दिया जाता तो वो भाग निकलता, और उसकी पीठ, पेट और तमाम एजा पर इतने कोड़े लगाए कि उसे गश्शा गया। ये देखकर बुढ़िया मलिका के पास से रोती और कोसती भागी। मलिका ने अपने नौकरों को पुकारकर कहा कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। वो उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़कर मलिका के सामने ले आए। मलिका ने हुक्म दिया कि उसे जमीन पर पटक दो और अपनी कनीजों से कहा कि उसे मुंह के बल घसीटो और मेरे सामने से ले जाकर बाहर फेंक आओ। ये तो उन लोगों का हाल हुआ। अब हसन का किस्सा सुनो। वो दिल मजबूत करके उठा और दरिया के किनारे जंगल की तरफ रवाना हो गया, लेकिन परेशान और गमगीन था और जीने से नाउमीद और इस कदर हवास पाक था कि दिन और रात में फर्क न कर सकता। चलते चलते वो एक दरख्त के पास पहुंचा जिस पर एक कागज का पुर्जा लटका हुआ था। हसन उसे हाथ में लेकर देखने लगा। देखा कि उसमें यह लिखा है, जब तू अपनी माँ के पेट में था
उस वक्त मैंने तेरा जायचा देखा था और हम तेरे रंजो अलम में तेरी दस्तगीरी करेंगे। उसे पढ़कर उसे यकीन आ गया कि अब मुझे तकलीफ से निजात मिल जाएगी और बिछड़े हुओं से मिल जाऊंगा। 2-4 कदम चलने के बाद उसने देखा कि वो अकेला एक सुनसान जगह में है, जहाँ कोई मोनिस व गमखार नहीं। उस तन्हाई व खौफ का ख्याल करके उसके होश जाते रहे और उस डरावनी जगह को देखकर वो कांपने लगा। दरिया के किनारे 2-4 कदम चलने के बाद उसे जादूगरों के 2 छोटे लड़के मिले, जिनके पास पीतल का एक डंडा था जिस पर तिलस्मात कंधा थे और उसके करीब चमड़े की एक तकुनी टोपी जिस पर फौलादी अस्बाब और तिलस्मात बने हुए थे। डंडा और टोपी दोनों जमीन पर पड़े थे। दोनों लड़के आपस में झगड़ रहे और एक दूसरे को इतना मार रहे थे कि दोनों के जिस्मों से खून जारी हो गया था। एक कहता था कि ये डंडा और टोपी मैं लूंगा और दूसरा कहता था कि मैं। हसन ने करीब जाकर उन दोनों को छुड़ाया और उनसे पूछा कि आखिर तुम किस बात पर झगड़ रहे हो। दोनों बोले कि चचा, हम में फैसला कर दे, क्योंकि इस वक्त खुदा ने तुझे यहाँ भेजा है कि हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करे। हसन ने कहा, मुझसे अपना किस्सा बयान करो, मैं तुम दोनों में फैसला कर दूंगा। वो बोले कि हम दोनों सगे भाई हैं। हमारा बाप बहुत बड़ा जादूगर था और इस पहाड़ की एक गार में रहता था। मरने के बाद उसने ये डंडा और ये टोपी तरके में छोड़ी। मेरा भाई कहता है कि उन्हें मैं लूंगा और मैं कहता हूँ कि मैं। हमारा फैसला करके हमें इससे निजात दे। उनकी बातें सुनकर हसन ने कहा, डंडे और टोपी में क्या फर्क है? जाहिरन तो डंडा 6 पैसे का होगा और टोपी 3 पैसे की। लड़कों ने कहा कि तुझे उनकी खासियत मालूम नहीं। हसन ने पूछा कि क्या खासियत है? उन्होंने कहा कि दोनों में अजीब व गरीब खासियत है। डंडे की कीमत जज़ायर बाग और उसके मकबूजात का खराज है और इस तरह टोपी की भी। हसन ने कहा, बेटो खुदा के लिए बताओ तो सही कि इनमें क्या भेद है। वो बोले कि चचा, इनमें बड़ी खासियत है। हमारा बाप 135 साल तक जिंदा रहा और बराबर इन्हीं को बनाता रहा, जहाँ तक कि उन्हें खूब अच्छी तरह से बनाया और उनमें से बड़े भेद रखे। उनके मातहत अजीब व गरीब मौकिल रखे, घूमने वाले आसमान कैसे उसमें नक्शो निगार बनाए और तमाम तिलस्मात कूट कूट कर भर दिए। जब वो उन्हें मुकम्मल बना चुका तो उसे मौत आ गई, जिससे किसी को मुफर नहीं। टोपी की तो ये खासियत है कि अगर कोई उसे पहन ले तो लोगों की नजरों से छुप जाएगा और जब तक वो उसके सर पर रहेगी कोई उसे देख ना सकेगा। रहा डंडा, उसकी ये खासियत है कि वो जिसके पास हो उसके कब्जे में 7 कबीले जिन्नों के आ जाएंगे। सातों उसी डंडे के मातहत थे, इसलिए वो सब उसका हुक्म मानेंगे। अगर डंडे का मालिक उसे हाथ में लेकर जमीन पर मारे तो जिन्नों के बादशाह उसकी इताअत करेंगे और तमाम जिन उसकी खिदमत में आ मौजूद होंगे। ये सुनकर हसन थोड़ी देर तक सर झुकाए रहा और दिल में कहने लगा कि खुदा की कसम, अगर खुदा ने चाहा तो मुझे ये डंडा और ये टोपी मिल जाएगी, क्योंकि लड़कों से ज्यादा मैं मुस्तहक हूँ। मैं अभी किसी न किसी चाल से लड़कों से दोनों चीजें ले लेता हूँ ताकि उनकी मदद से मैं अपनी बीवी बच्चों को उस जालिम मलिका के पंजे से छुड़ा सकूं और इस अंधेर नगरी से चलता बनूं, जहाँ से आज तक किसी इंसान को छुटकारा नहीं मिला है। शायद खुदा मुझे उन दोनों लड़कों के पास इसी वजह से लाया है कि मैं इनसे डंडा और टोपी ले उड़ूं। अब उसने सर उठाकर लड़कों से कहा कि अगर तुम फैसला चाहते हो तो मैं तुम्हारा इम्तिहान करता हूँ और जो गालिब आ जाए उसका डंडा और जो मगलूब हो उसकी टोपी। इम्तिहान लेकर मैं ये फैसला कर दूंगा कि तुम में से कौन किस चीज का मुस्तहिक है। दोनों बोले कि चचा, हम तुझे इम्तिहान लेने का इख्तियार देते हैं, जिस तरह तेरा जी चाहे फैसला कर। हसन ने कहा, क्या तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। हसन ने कहा कि मैं एक पत्थर फेंकता हूँ, जो आगे दौड़कर उसे उठा लाएगा उसे डंडा मिलेगा और जो पीछे रह जाएगा टोपी पाएगा। दोनों बोले कि हम इस बात को मंजूर करते हैं और इस पर राजी हैं। अब हसन ने एक पत्थर लेकर अपनी पूरी कुव्वत से उसे फेंका और वो नजरों से गायब हो गया और दोनों लड़के उसके पीछे दौड़े। जब वो दूर पहुंच गए तो हसन ने टोपी लेकर पहन ली और डंडे को हाथ में लेकर अपनी जगह बदल दी ताकि वो देखे कि उन्होंने अपने बाप का भेद सच बताया है कि नहीं। छोटे लड़के ने आगे बढ़कर पत्थर उठा लिया और उसे लेकर वहां लौटा जहां हसन था, लेकिन उसका पता बिल्कुल न पाया और अपने भाई को पुकार कहा कि वो शख्स कहाँ है जो हमारा हाकिम था। भाई बोला कि वो मुझे भी दिखाई नहीं देता, मालूम नहीं कि आसमान पर चढ़ गया या जमीन में घुस गया। दोनों ने हसन को बतेरा ढूंढा लेकिन वो दिखाई न दिया, अगरचे हसन अपनी जगह खड़ा रहा। लड़के एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और बोले कि डंडा भी जाता रहा और टोपी भी, न तुझे कुछ मिला न मुझे। हमारे बाप ने यही कहा था, लेकिन हम उसकी बात भूल गए थे। एक एक दोनों लड़के लौट गए और हसन टोपी पहने और डंडा हाथ में लिए शहर के अंदर गया। कोई उसे देख न सका और वो महल में दाखिल होकर उस जगह पहुंचा जहाँ छिवाई थी। उसी तरह उसके पास पहुंच गया और उसे देख न सकी। चलते चलते वो उस अलमारी के पास पहुंचा जिसके नीचे बुढ़िया बैठी हुई थी और जिसमें कांच और चीनी के बर्तन रखे हुए थे। हसन ने अलमारी को अपने हाथ से हिलाया और जो कुछ उसके अंदर था
जमीन पर गिर पड़ा। शिवाही शोर मचाने और अपना मुंह पीटने लगी। उसने उठकर वो चीजें फिर उनकी जगह पर रख दी और अपने दिल में कहने लगी कि जरूर मलिका नूरुल हुदा ने कोई शैतान भेजा है जो मेरे साथ ये हरकत कर रहा है। मैं खुदा से दुआ मांगती हूँ कि वो मुझे मलिका के पंजे से छुड़ाए और उसके गुस्से से मुझे बचाए। खुदावंदा कि जब मलिका नूरुल हुदा ने अपनी बहन के साथ ये हरकत की तो अगर वो किसी गरीब पर नाराज हो गई तो न मालूम उसकी क्या गत बनाएगी। उसके बाद उसने कहा, हे शैतान, मैं तुझे कसम देती हूँ उस जात की जो हन्नान मनान अजीम अल शान कवी अल सुल्तान और इंसानों और जिन्नात का पैदा करने वाला है, और उस नक्श की जो सलमान बिन दाऊद की अंगूठी पर है, बोल और मुझे जवाब दे। उसका जवाब हसन ने दिया कि मैं शैतान नहीं बल्कि मोहब्बत का मारा हैरान परेशान हसन हूँ। ये कहकर उसने सर से टोपी उतार ली। बुढ़िया ने उसे पहचान लिया और कहने लगी कि क्या तेरी अकल मारी गई है? यहाँ आया, जाकर कहीं छुप जा। उस हरामजादी ने तेरी बीवी को सख्त से सख्त तकलीफ पहुंचाई है, हालांकि वो उसकी बहन है। फिर अगर तू उसके हत्थे चढ़ गया तो तेरी क्या गत बनेगी? ये कहकर उसे उसकी बीवी का सारा किस्सा सुना दिया कि वो किस तकलीफ और मुसीबत और बला में मुब्तला गिरफ्तार है। उसके बाद वो बोली कि मलिका तुझे छोड़कर सख्त पश्चिमा है और उसने तेरे पकड़ने के लिए एक शख्स को भेजा है जिसे वो ढेरों सोना देगी और मेरे ओहदे पर मुकर्रर कर देगी। उसने कसम खाई है कि अगर वो शख्स तुझे पकड़ लाए तो वो तुझे भी कत्ल कर देगी और तेरी बीवी बच्चों को भी। बुढ़िया ने ये बातें जो सुनाई तो हसन रोने लगा और उसने कहा, मेरी आका, इस मुल्क और इस जालिम मलिका से क्यों कर छुटकारा मिल सकता है, और तू मुझे क्या तदबीर बता सकती है जिससे मैं बीवी बच्चों को छुड़ा सकूं और उन्हें लेकर सही सालिम अपने वतन पहुंच जाऊं। बुढ़िया बोली, कमबख्त, अपनी जान लेकर भाग। हसन ने कहा, मैं तो अपनी बीवी और अपने बच्चों को उससे जबरदस्ती छुड़ा कर रहूंगा। बुढ़िया बोली कि तू उन्हें किस तरह उनसे जबरदस्ती छुड़ाएगा? बेटा जाकर कहीं छुप रहे और देख के खुदा का क्या हुक्म होता है। अब हसन ने उसे पीतल का डंडा और टोपी दिखाई। बुढ़िया उन्हें देखकर बाग बाग हो गई और कहने लगी कि पाक है वो खुदा जो गली सड़ी हड्डियों को जिंदा कर देता है। बेटा, तेरे और तेरी बीवी के लिए सिवा मरने के और कोई चारा न था, लेकिन बेटा अब तो तू भी बच गया और तेरी बीवी बच्चे भी, क्योंकि मैं इस डंडे को भी जानती हूँ और इसके मालिक को भी। वो मेरा उस्ताद था जिसने मुझे जादू सिखाया है। वो बहुत बड़ा जादूगर था। वो 135 साल जिंदा रहा और इस डंडे और टोपी को मुकम्मल करके छोड़ा। जब वो उन्हें तकमील तक पहुंचा चुका तो उसे मौत आ गई, जिससे किसी को निजात नहीं। मैंने खुद सुना है कि वो अपने बेटों से कहता था कि ये दोनों चीजें तुम्हारी किस्मत में नहीं है, बल्कि एक परदेसी आकर उन्हें तुमसे जबरदस्ती ले जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरह ले गया। लड़कों ने कहा कि अब्बा, पता कि वो किस तरह उन्हें ले जाएगा। बाप ने कहा कि बेटो, ये मुझे भी मालूम नहीं। बेटा बता तो सही, ये चीजें कैसे तेरे हाथ लगी? हसन ने सारा माजरा सुना दिया कि वो उन्हें किस तरह दोनों लड़कों से लेकर उड़ा। ये सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और कहने लगी कि बेटा, अब चूंकि तेरे बीवी बच्चे तुझे मिल जाएंगे, लिहाजा मेरी बात सुन। उस तकलीफ के बाद जो इस हरामजादी ने मुझे पहुंचाई है, मैं तो उसके पास न ठहरूंगी, बल्कि जादूगरों के गार में जाकर मरते दम तक उनके साथ रहूंगी। लेकिन बेटा, तू टोपी पहनकर और हाथ में डंडा लेकर उस जगह जा जहां तेरे बीवी बच्चे हैं और डंडे को जमीन पर मार कर कहियो कि इस तिल्समात के मौकिलो। तेरे ये कहते ही मौकिल तेरे पास हाजिर हो जाएंगे। अगर कबीले के सरदारों में से कोई हाजिर हो तो जो तेरी जरूरत हो उसे बयान कर दीजिए। अब वो बुढ़िया से रुखसत होकर बाहर निकला और टोपी पहनकर और डंडा हाथ में लेकर उस जगह पहुंचा जहाँ उसकी बीवी थी, और देखा कि उस पर मर्दनी छाई हुई है और वो टिकटिकी से बंधी लटक रही है। उसके बाल लटके हुए हैं और वो गमगीन है, रो रही है, बुरा हाल है। उसके बच्चे सीढ़ी के नीचे खेल रहे हैं और वो उन पर और अपने आप पर वावेला कर रही है और सख्त मुसीबत में मुब्तला है। उसे इस तकलीफ और जिल्लत में देखकर हसन को गश्शा गया। जब उसे होश आया और उसने देखा कि बच्चे खेल कूद रहे हैं और उनकी माँ मारे तकलीफ के बेहोश पड़ी है, तो उसने टोपी उतार दी और बच्चों ने अब्बा अब्बा चिल्लाना शुरू किया। ये सुनकर उसने फिर टोपी पहन ली। बच्चों के शोर से माँ को होश आ गया। उसे कोई नजर न आया। उसने सिर्फ ये देखा कि बच्चे रो रहे हैं और अब्बा अब्बा पुकार रहे हैं। बच्चों को बाप का नाम लेते और रोते देखकर वो भी रो पड़ी। उसका सीना फटने लगा और वो जख्म खोरदा दिल से कहने लगी, तुम कहाँ और तुम्हारा बाप कहाँ? उसके बाद उसे वो जमाना याद आ गया जबकि वो साथ थे। नेज वो बातें जो उसकी जुदाई के बाद उस पर गुजरी थी, और वो इतना रोई कि आंसुओं से उसके रुखसार धुल गए और उसका कोई हाथ खुला हुआ न था कि वो आंसू पोंछ सके। हाँ, मक्खियां उसकी जिल्द पर बैठकर खून चूस रही थी और उसके लिए सिवा रोने के कोई चारा न था। रोने धोने के बाद हसन की बीवी ने इधर उधर देखा कि उसके बच्चे क्यों रो रहे हैं और किसे अपना बाप कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन उसे कोई शख्स दिखाई न दिया। जब उसे कोई नजर न आया तो उसे ताज्जुब हुआ कि इस वक्त बच्चों ने अपने बाप को क्यों याद किया।
ये तो उसकी दास्तां हुई। अब हसन का माजरा सुनो। वो उसे रोता देख कर खुद भी रोने लगा और इतना रोया कि बेहोश होने के करीब हो गया। फिर रोते रोते बच्चों के पास जाकर उसने टोपी उतार दी। बच्चों ने उसे देखकर फिर पहचान लिया और वो फिर अब्बा अब्बा कहकर चिल्लाने लगे। बच्चों के मुंह से बाप का नाम सुनकर उनकी माँ रोने लगी। उसने कहा, खुदा के लिखे के खिलाफ किसी की नहीं चलती। वो हैरान थी कि या अल्लाह, इस वक्त बच्चे क्यों अपने बाप को याद कर रहे हैं और पुकार रहे हैं। हसन से अब ज्यादा रहा न गया और उसने टोपी उतार दी। जो ही उसकी बीवी ने उसे देखा, इस जोर से चीख मारी कि सारे महल वाले सहम गए। फिर उसने पूछा, तू यहाँ तक कैसे पहुंच गया? क्या तू आसमान पर से उतरा है या जमीन तोड़कर निकला है? उसके बाद उसकी आंखों में आंसू डुबडुबा आए और हसन भी रो पड़ा। बीवी ने कहा, ए शख्स, ये न रोने का वक्त है न शिकवे शिकायत का। जो किस्मत में लिखा था पूरा हो गया और आंखें अंधी हो गई। जो खुदा ने अज़ल में हुक्म दे दिया था, कलम ने लिख दिया था। मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ कि जहाँ से आया है वहां लौट जा, कहीं कोई तुझे देख न ले। अगर मेरी बहन को खबर हो गई तो वो मुझे भी जिबा कर डालेगी और तुझे भी। हसन बोला, ए मेरी और तमाम शहजादियों की आका, मैं जान पर खेल कर यहाँ आया हूँ। या तो मर जाऊंगा या इस मुसीबत से छुड़ाकर तुझे और अपने बच्चों को वतन ले जाऊंगा, ख्वाह तेरी बहन कितनी ही मुखालफत क्यों न करे। उसकी बातें सुनकर वो मुस्कुराने और हंसने लगी और देर तक अपना सर हिलाती रही। फिर बोली, ये मेरी जान, मुमकिन नहीं कि सिवा खुदा के और कोई मुझे इस मुसीबत से छुड़ा सके। लिहाजा यहाँ से भाग जा और अपनी जान को हलाकत में न डाल। उसके पास इतना जबरदस्त लश्कर है कि किसी को उसके मुकाबले की ताब नहीं हो सकती। और मान लिया कि तू मुझे लेकर यहाँ से चल दिया, लेकिन ये तो बता कि उन जजीरों से निकलकर जहाँ बेहद दुश्वारियां और खतरे हैं, अपने वतन किस तरह पहुंचेगा। राह में तूने खुद अजीबो गरीब चीजें और खतरे और ऐसी ऐसी बलाई देखी होंगी जिनसे बड़े बड़े जबरदस्त जिन्नों का छुटकारा भी मुमकिन नहीं। लिहाजा फौरन चल दे और मुझे गम पर गम और रंज पर रंज न दे, और ये दावा न कर कि तू मुझे इस हालत से निजात देकर अपने वतन ले जाएगा। हसन बोला, ये मेरी आंखों की रोशनी, कसम है मुझे तेरी जान की, मैं बेतेरे न इस जगह से निकलूंगा न सफर करूंगा। उसने जवाब दिया, ए शख्स, तू ये काम कैसे कर सकता है? आखिर तुझ में क्या कमाल है? तू सोच समझ कर बात नहीं करता। अगर तेरे कब्जे में जिन और देव और जादूगर भी हो तो भी उस जगह से छुटकारा नहीं पा सकता। बेहतर है कि तू अपनी जान लेकर भाग और मुझे छोड़ दे। मुमकिन है कि खुदा इन बातों के बाद दूसरी बातें पैदा कर दे। हसन बोला, ए हसीनों की सरदार, मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि इस डंडे और टोपी के जोर से तुझे छुड़ाऊं। ये कहकर वो दोनों लड़कों का किस्सा उससे बयान ही कर रहा था कि मलका आ पहुंची और उनकी गुफ्तगू सुनने लगी। मलका को देखकर हसन ने टोपी पहन ली और वो अपनी बहन से कहने लगी, एक कमजात, तू किससे बातें कर रही थी? उसने जवाब दिया, सिवाय इन बच्चों के यहाँ है कौन जो मुझसे बातें करे। अब मलिका ने कोड़ा लेकर उसे मारना शुरू कर दिया और हसन खड़ा देखता रहा। उसने इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और हुक्म दिया कि उसे इस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। लोग उसे खोलकर दूसरी जगह ले गए। जहां उसे ले गए, हसन भी साथ साथ गया। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे बेहोशी की हालत में उसे जमीन पर डाल दिया और खड़े देखते रहे। जब उसे होश आया तो कनीतें उसके पास से चली गई। हसन ने फिर टोपी उतार ली। उसकी बीवी ने कहा, शख्स, देख, ये मेरी गत इसलिए बनी है कि मैंने तेरी नाफरमानी की और तेरा हुक्म न माना और बगैर तेरी इजाजत चली आई। ये शख्स, खुदा के लिए इसकी सजा मुझे न दीजिए। यकीन जान कि जब तक मियाँ बीवी में जुदाई नहीं होती उस वक्त तक बीवी मियाँ की कदर नहीं जानती। सच है कि मैं गुनहगार और खतादार हूँ, लेकिन खुदा के आगे अपने किए की माफी मांगती हूँ। अगर खुदा ने हमें फिर मिला दिया तो कभी तेरे हुक्म की नाफरमानी न करूंगी। जब हसन की बीवी ने उसके आगे मोजरत की तो हसन का दिल दुखने लगा। उसने कहा, खता तेरी नहीं है बल्कि खतावार में हूँ, क्योंकि मैं तुझे ऐसे शख्स के पास छोड़कर चला गया था जिसे तेरी कदरों कीमत बिल्कुल मालूम न थी। और ये मेरे दिल की ठंडक और आंख की रोशनी, खुदा ने मुझे ये कुदरत दी है कि मैं तुझे छुड़ा लूं। लेकिन ये बता कि उसके बाद तू ये चाहती है कि जब तक खुदा का हुक्म पूरा न हो ले अपने बाप के पास रहे, या ये चाहती है कि फौरन हमारे वतन चली चले जहां तेरे लिए खुशी ही खुशी है? उसने जवाब दिया, सिवा आसमान के परवरदिगार के मुझे कौन छुड़ा सकता है। लिहाजा अपने मुल्क को चला जा और लालच अपने दिल से निकाल डाल, क्योंकि उन मुल्कों के खतरों की तुझे खबर नहीं। अगर तूने मेरा कहना न माना तो तू अनकरीब उसका मजा चख लेगा। उसके बाद वो और उसके बच्चे इतना रोए कि कनीज़ें उनकी आवाजें सुनकर अंदर आ गई और उन्होंने देखा कि शहजादी मनार सना
और उसके बच्चे रो रहे हैं। हसन उनकी नजरों से गायब था। कनीजों का दिल उन पर इतना कड़ा कि वो रोने और मलिका नूरुल हुदा को कोसने लगी। हसन ने रात तक इंतजार किया। जब पहरेदार चले गए तो वो उठा, कमर कसकर अपनी बीवी के पास आया, उसे खोलकर उसका सर चूमा, सीने से लगाया और कहा कि मैं इस बात का कितना मुश्ताक हूँ कि अपने वतन जाकर सबसे मिलूं। मालूम नहीं कि हमारा इस वक्त का मिलना ख्वाब में है या बेदारी में। ये कहकर उसने बड़े लड़के को गोद में उठाया और उसकी बीवी ने छोटे लड़के को, और महल से निकलकर चल दिए। खुदा ने उनकी पर्दापोशी की। महल से निकलकर वो उस दरवाजे पर पहुंचे जो मलिका के हरम सरा में खुलता था। ये देखकर कि उनमें कफल पड़ा हुआ है, हसन लाहौला पड़ने लगा और उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। हसन यह मुश्किल कुशा कहकर हाथ मलने लगा कि सिवा उसके हर बात का मैंने इंतजाम कर लिया और नतीजा सोच लिया था। फिर निकलते ही लोग हमें गिरफ्तार कर लेंगे। अब क्या करना चाहिए? हसन के आंसू निकल पड़े। उसकी बीवी भी रोने लगी। अपनी तौहीन और रंजो अलम का ख्याल करके अफसोस करती और कहती कि खुदा की कसम, हमें बेइस के चैन नहीं मिलेगा कि हम खुदकुशी करके इस मुसीबत से निजात पाएं, वरना कल सुबह हमें फिर तकलीफों का सामना है। वो यही बातें कर रहे थे कि किसी ने बाहर से आवाज दी और कहा, ए मेरी आका मनारत सना और उसके शोहर हसन, जब तक तुम मेरी बात न मान लो मैं दरवाजा न खोलूंगी। वो चुप हो गए और चाहते ही थे कि जहां से आए हैं वहीं लौट जाए कि इतने में फिर किसी की आवाज आई कि तुम चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? अब दोनों ने पहचान लिया कि बुढ़िया शिवाही जात अल-लुद्वाही की आवाज है और जवाब दिया कि जो कुछ तेरा हुक्म हो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले दरवाजा तो खोल दे, ये ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं है। बुढ़िया बोली कि खुदा की कसम, मैं उस वक्त तक दरवाजा न खोलूंगी जब तक तुम कसम न खा लो कि तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे। मैं इस जालिम के पास रहना नहीं चाहती। जो तुम्हारी हालत होगी वही मेरी भी होगी। अगर तुम सही सलामत रहे तो मैं भी रहूंगी, और अगर तुम पर मुसीबत आएगी तो मैं भी उसे झेलूंगी, क्योंकि ये हरामजादी हर वक्त मेरी जिल्लत करती है और तुम्हारी वजह से मेरे पीछे बढ़ गई है। और ए मेरी बेटी, तू मेरी कदर कीमत जानती है। जब उन्होंने बुढ़िया को पहचान लिया तो उन्हें इत्मीनान हुआ और उन्होंने इतनी कसमें खाई कि उसे यकीन आ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। दोनों बाहर निकल आए। देखा कि बुढ़िया एक रूमी सुर्ख मट्टी के मटके पर सवार है। मटके के गले में ताड़ के रेशियों की एक रस्सी पड़ी हुई है। मटका उसके नीचे घूम रहा और नजदी बछेरे से भी तेज चल रहा है। बुढ़िया ने आगे बढ़कर कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ और किसी की बात से न डरो। जादू के 40 बाब मुझे बाजुबान याद हैं, जिनमें से सबसे छोटा यह है कि मैं इस शहर को एक मुतलातिम समंदर बना सकती हूँ, जिसमें तमाम लड़कियां जादू के जोर से मछलियां बन जाए और सवेरा होने से पहले पहले ये तमाम बातें पेश आ जाए। लेकिन मैं महज उसके बाप के डर से और उसकी बहनों की खातिर ये नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास जिन्नों और जिन्नों का बहुत बड़ा लश्कर है। तुम अनकरीब मेरे जादू की तिरंगियां देख लोगे। खुदा से बरकत और मदद की दुआ मांगकर चल खड़े हो। ये सुनकर हसन और उसकी बीवी खुश हो गए और उनको अपनी निजात का यकीन आ गया। जब हसन, उसकी बीवी और बुढ़िया शिवाई महल से निकले और उन्हें अपने बच जाने का यकीन हो गया तो वो शहर के बाहर पहुंचे। हसन ने डंडा लेकर जमीन पर मारा और दिल को कड़ा करके कहा कि ए तिलस्मात के मौकिलो, तुम अपने हाथ से आकर मुझे मुतला करो। जमीन फटी और उसमें से 10 देव निकले, जिनके पांव जमीन के अंदर घुसे हुए और सर बादलों से टक्कर खा रहे थे। उन्होंने हसन के आगे 3 बार जमीन चूमी और एक जुबान होकर कहा, ए हमारे आका और हाकिम, हम हाजिर हैं, तेरा हर हुक्म मानने और बजा लाने के लिए तैयार हैं। अगर तू चाहे तो हम समंदरों को सुखा दे और पहाड़ों को उनकी जगह से हटा दे। हसन ने देखा कि कितनी जल्द उन्होंने जवाब दिया तो वो खुश हो गया और अपना दिल मजबूत करके कहने लगा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारे नाम क्या है? किस कबीले की तरफ से तुम मनसूब हो? किस गिरोह, किस जमायत और किस खानदान से ताल्लुक रखते हो? ये सुनकर उन्होंने दोबारा जमीन चूमी और बोले कि हम में 7 बादशाह हैं। हर एक जिन्नों, शैतानों और देवों के साथ साथ कबीलों पर हुकूमत करता है। लिहाजा हम 7 बादशाहों के मातहत जिन्नात, शयातीन और देवों के 49 कबीले हैं, जिनमें उड़ने वाले, जमीन के अंदर घुसने वाले, पहाड़ों, जंगलों, बयाबानों और समंदरों के रहने वाले हैं। तू जो हुक्म देना चाहे दे। हम तेरे नौकर और गुलाम हैं। जिसके कब्जे में ये डंडा है वही हमारी गर्दनों का भी मालिक है और हम उसी के फरमाबरदार हैं। उनकी बातें सुनकर हसन, उसकी बीवी और बुढ़िया सब के सब खुश हो गए और हसन ने उन जिन्नों से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने कबीलों और लश्करों से मिलाओ। उन्होंने जवाब दिया, है हमारे आका, हम तुझे और तेरे साथियों को अपने लोगों से मिलाते हुए डरते हैं, क्योंकि उनकी मिकदार बहुत ज्यादा है। सूरतें, शक्लें, रंग, चेहरे और बदन तरह तरह के हैं। बाज हम में से सर हैं, बेजिस्म के
اور बाज जिसमें बेसर के, बाजों की शक्ल वेशी जानवरों की है और बाजों की दरिंदों की सी। लेकिन अगर तू यही चाहता है तो हम जरूर दिखाएंगे, और सबसे पहले तू उनको देखेगा जो वेशी जानवरों की शक्ल के हैं। मगर ए हमारे आका, इस वक्त तू हमसे क्या चाहता है? हसन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी बीवी और इस नेक औरत को अभी बगदाद ले चलो। ये सुनकर जिन्होंने सर नीचा कर लिया। हसन ने पूछा कि तुम जवाब क्यों नहीं देते? वो एक जुबान होकर बोले, ए हमारे आका और हाकिम, हम हज़रत सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने के हैं। उन्होंने हमें कसम दी थी कि हम किसी आदमी जात को अपने ऊपर सवार न करें। उस वक्त से लेकर आज तक न किसी आदम जात को हमने अपने कंधों पर बिठाया है न पीठों पर, लेकिन हम फौरन जिन्नात के घोड़ों को कस कर लाते हैं। वो तुझे और तेरे साथियों को तेरे वतन पहुंचा आएंगे। हसन ने पूछा, यहाँ से बगदाद कितनी दूर है? उन्होंने जवाब दिया कि तेज रफ्तार सवार के लिए 7 बरस की राह। हसन ने ताजुब से कहा, फिर मैं कैसे 1 साल से कम में पहुंच गया? उन्होंने जवाब दिया कि खुदा ने अपने नेक बंदों का दिल तुझ पर मेहरबान कर दिया था। अगर ऐसा ना होता तो इस मुल्क तक तेरी पहुंच ना होती और कि तू उसकी सूरत भी न देख सकता। शेख अब्दुल कुदूस ने तुझे हाथी और मेमून घोड़े पर बिठाकर 3 दिन में इतनी दूर पहुंचाया है जितना कि एक तेज रफ्तार सवार 3 बरस में चलता है। और शेख अबू अल रवेश ने जो तुझे धनुष के सुपर्द किया था, उसने 1 रात और 1 दिन में तेरे साथ 3 बरस की मुसाफिर तय की। ये खुदा की मेहरबानी थी, क्योंकि शेख अबू अल रवेश आसिफ बिन बरखा की औलाद में से है और उसे इसमें आजम आता है। बगदाद से लड़कियों के महल तक 1 बरस की राह है। ये पूरे 7 साल हो गए। ये सुनकर हसन को बड़ा ताजुब हुआ और वो कहने लगा कि पाक है वो जात जो मुश्किलें आसान करती, टूटे हुए दिल जोड़ती है, दूर को नजदीक करती है और हर जालिम सरकश को नीचा दिखाती है। उसी ने हमारी मुश्किलें आसान की और मुझे इस मुल्क में पहुंचा कर उन तमाम मखलूक को मेरा फरमाबरदार बनाया और मुझे मेरी बीवी बच्चों से मिलाया। ना मालूम मैं सो रहा या जाग रहा हूँ, नशे में हूँ या होश में। उसके बाद हसन ने उनकी तरफ मुखातिब होकर कहा, अगर तुम हमें अपने घोड़ों पर सवार कर दोगे, वो हमें कितने दिन में बगदाद पहुंचा देंगे? उन्होंने जवाब दिया कि पहुंचा तो वो तुम्हें 1 साल से कम में देंगे, लेकिन इस मुद्दत में बेशुमार तकलीफों, सख्तियों और खतरों का सामना होगा। खुश्क घाटियों, दशतनाक बियाबानों, जंगलों और मोहलिक मकामात में से होकर गुजरना होगा। क्योंकि ए मेरे आका, हम डरते हैं कि कहीं जजीरों वालों से तुझे नुकसान न पहुंच जाए, या मलिक अकबर से या उन जादूगरों और कहानों से हो सकता है कि वो हमें शिकस्त देकर तुम्हें हमसे छीन ले और हमारी बुरी दुर्गत बनाए। और जो कोई ये खबर सुने हम में से कहे कि तुमने बड़ी ज्यादती की, तुमने ये क्या किया कि मलिक अकबर के मुल्क में जाकर उसकी लड़की को भी उठा ले गए और एक इंसान को भी। अगर तू अकेला हमारे साथ होता तो हमारे लिए आसानी थी, लेकिन परवाह नहीं। जिस जात ने तुझे उन जजीरों तक पहुंचाया है, वो इस पर भी कादिर है कि तुझे तेरे वतन पहुंचा दे और तू अनकरीब अपनी माँ से मिल जाए। हिम्मत करके खुदा पर भरोसा कर और डर नहीं। जब तक अपने वतन ना पहुंच जाएगा, हम तेरे साथ रहेंगे। हसन ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा तुम्हें नेक बदला दे। अच्छा, घोड़े जल्द लाओ। उन्होंने पाँव जमीन पर मारे, जमीन फट गई, वो उसके अंदर गायब हो गए और थोड़ी देर के बाद 3 घोड़े लेकर निकले, जिन पर जीनें कसी हुई थी, लगामें लगी हुई थी और हर जीन के अगले हिस्से में 2-2 खुरजीनियां लटकी हुई थी। एक में पानी भरी थैलियां थी और दूसरी में खाना। उन्होंने घोड़े पेश किए। एक पर हसन सवार हो गया और एक लड़के को अपने आगे बिठा लिया, दूसरे पर उसकी बीवी बैठी और दूसरे लड़के को अपने सामने सवार कर लिया। फिर बुढ़िया अपने मटके पर से उतर कर तीसरे घोड़े पर बैठ गई। रात भर चले। सुबह हुई तो रास्ते हटकर पहाड़ का रुख किया और बराबर खुदा की याद में पहाड़ से लगे लगे चलते रहे। चलते चलते हसन को अपने आगे एक पहाड़ दिखाई दिया जो एक सतून की तरह था और इतना लंबा कि गोया धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है। उसे देखकर हसन कुरान की आयतें पढ़ने लगा और खुदा के आगे मरदूद शैतान से पनाह मांगी। जो जो वो उसके करीब होते जाते, स्याही ज्यादा साफ नजर आती जाती, यहाँ तक कि जब वो उसके नीचे पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि वो एक दियो है जिसका सर एक बड़े गुंबद जैसा, दांत नेजों की तरह, जबड़ा सड़क की मानद, नथने लोटों की मिसल, कान जैसे चमड़े की ढालें, मुंह गार, दांत पत्थर के सतून और हाथ सलाइयों की तरह और टांगे मस्तूलों जैसी। उसका सर बादलों के अंदर था और पांव जमीन के नीचे मिट्टी में। उस जो को देखते ही हसन ने उसके आगे झुककर जमीन चूमी। जो ने कहा, है हसन, मुझसे डर नहीं, मैं इस मुल्क के बाशिंदों का सरदार और ये जजायर वाक में से पहला जजीरा है। मैं मुसलमान हूँ और खुदा की तौहीद का कायल। तुम्हारे आने की खबर सुनकर और तुम्हारा हाल मालूम करके मुझे इस बात की आरज़ू हुई कि जादूगरों के मुल्क को छोड़कर ऐसी जगह रहूं जो गैर आबाद हो, जहाँ दूर दूर न इंसान बसते हो न जिन्नात। अकेला रहकर मैं खुदा की इबादत करता रहूं
یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رہبری کروں تاکہ تم ان جزیروں سے نکل جاؤ۔ میں محض رات کو دکھائی دیتا ہوں۔ میری طرف سے تم مطمئن رہو، کیونکہ جیسے تم مسلمان ہو میں بھی ہوں۔ دیو کی باتیں سن کر حسن بہت خوش ہوا۔ اسے اپنی نجات کا یقین آ گیا اور دیو کی طرف مخاطب ہو کر بولا، خدا تجھے نیک بدلا دے، آ ہمارے ساتھ چل۔ دیو ان کے آگے آگے ہو لیا۔ ہم باتیں اور ہنسی مذاق کرتے روانہ ہو گئے۔ سب کچھ اور مطمئن تھے اور حسن اپنی بیوی سے اپنی بیتی کہا جاتا تھا۔ اس طرح وہ رات بھر چلتے رہے۔ وہ لوگ رات بھر گھوڑوں پر سوار رہے اور گھوڑے بجلی کی طرح چلا کیے۔ جب دن نکلا تو ہر ایک نے اپنی کھرجی میں ہاتھ ڈالا، کھانا نکال کر کھایا اور پانی نکال کر پیا۔ اس کے بعد وہ تیز چلنے لگے۔ جو ان کے آگے آگے تھا وہ ایک راستہ چھوڑ کر انہیں دوسرے راستے سے لے گیا جہاں بالکل آمد و رفت نہ تھی اور جو سمندر سے لگا لگا جاتا تھا۔ اسی طرح وہ 1 مہینے تک گھاٹیاں اور بیاباں طے کرتے رہے اور 21ویں دن انہیں گرد اڑتی نظر آئی جو اٹھ کر چاروں طرف پھیل گئی اور دن تاریک نظر آنے لگا اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگی۔ حسن گھبرا گیا اور اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ بڑھیا نے حسن کی طرف مخاطب ہو کر کہا، بیٹا جزائر باغ کا لشکر آ پہنچا ہے اور وہ ہمیں فوراً گرفتار کر لیں گے۔ حسن بولا، اب کیا کیا جائے؟ اس نے جواب دیا کہ ڈنڈا زمین پر مارنا تھا۔ یہ ساتوں بادشاہ نکل کر حسن کے پاس آئے اور اس کے آگے زمین چوم کر کہنے لگے کہ ڈر نہیں، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی یہ بات سن کر حسن خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اے جنوں اور دیووں کے سردار، تم نے خوب کیا، یہی تمہاری مدد کا وقت ہے۔ وہ بولے کہ تو اپنی بیوی بچوں اور ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جا، ہم ان سے نپٹ لیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ حق پر ہو اور وہ باطل پر۔ خدا ہمیں ان پر فتح دے گا۔ حسن، اس کی بیوی بچے اور بڑھیا گھوڑوں پر سے اتر پڑے، پہاڑ کے دامن پر چڑھ گئے۔ اتنے میں ملکہ نور الہدیٰ اپنے لشکر کے مینے اور میسرے کے ساتھ آ پہنچی۔ سرداروں نے صفیں آراستہ کی، دونوں لشکر مقابلے میں آئے۔ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، شعلے بلند ہونے، بہادر بڑھنے اور بزدل بھاگنے لگے۔ جنوں کے منہ سے آگ کی چنگاریاں بھڑکنے لگی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور دونوں گروہ الگ الگ ہو گئے۔ جب وہ گھوڑوں سے اترے تو انہوں نے آگ جلائی۔ اب ساتوں بادشاہوں نے حسن کے پاس آ کر زمین چومی۔ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا، فتح کی دعا دی اور ان سے پوچھا کہ ملکہ نور الہدیٰ کی فوج کے مقابلے میں ان کا کیا حال رہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ 3 دن سے زیادہ ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ آج بھی میدان ہمارے ہی ہاتھ رہا۔ ہم نے ان میں سے قریب 2000 کے قیدی پکڑے ہیں اور قتل تو اتنوں کو کیا ہے جن کی گنتی نہیں۔ لہذا خوش ہو اور غم نہ کر۔ اس کے بعد وہ اس سے رخصت ہو کر اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گئے اور انہوں نے رات بھر آگ جلتی رکھی۔ صبح ہوئی اور دن نکلا تو سوار گھوڑوں پر سوار ہو گئے، چمکدار تلواروں اور گندمی نیزوں سے لڑنے لگے۔ تمام رات انہوں نے گھوڑوں کی پیٹھ پر گزاری۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک موجزن سمندر ہے اور لڑائی کے شعلے لپٹے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اتنے سخت حملے کیے کہ واغ کا لشکر دبنے لگا۔ ان کے دل ٹوٹ گئے، ہمت پست ہو گئی اور قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ جس طرف بھاگ کر جاتے شکست کھاتے۔ ملا کر وہ دم دبا کر بھاگے۔ ان کا بڑا حصہ مارا جا چکا تھا۔ ملکہ نور الہدیٰ اور اس کے سردار اور مصاحب قید ہو چکے تھے۔ جب سویرا ہوا تو ساتوں بادشاہوں نے آ کر حسن کے لیے مرمر کا تخت لگایا جس میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور تخت پر اسے بٹھا کر اس کے پاس ایک اور بچھایا جو اس کی بیوی منال ثنا کے لیے تھا۔ یہ تخت ہاتھی دانت کا تھا جس پر قیمتی سونے کے پتھر چڑھے ہوئے تھے۔ وہ اس پر بیٹھ گئی۔ اس کے پہلو میں انہوں نے تیسرا تخت ڈالا، اس پر بڑھیا شواہی ذات اللدوائی کو بٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے حسن کے سامنے قیدیوں کو پیش کیا۔ ان میں ملکہ نور الہدیٰ بھی تھی، اس کی مشکیں بندھی ہوئی اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی تھی۔ بڑھیا نے اسے دیکھ کر کہا، اے ظالمہ اور فاجرہ، تیری سزا اب یہی ہو سکتی ہے کہ 2 کتوں کو بھوکا اور 2 گھوڑوں کو پیاسا رکھ کر تجھے گھوڑوں کی دموں سے باندھ دیا جائے اور انہیں سمندر کی طرف بھگا کر دونوں کتوں کو تیرے پیچھے لگا دیا جائے تاکہ وہ تیرے تکے بوٹیاں کاٹ ڈالیں۔ اے فاجرہ، تو نے اپنی بہن کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی، حالانکہ اس نے خدا اور رسول کی سنت کے موافق حلال طور پر شادی کی ہے۔ اسلام بھی رہبانیت نہیں سکھاتا اور نکاح کرنا تمام بڑے پیغمبروں کی سنت رہی ہے۔ عورتیں مردوں ہی کے لیے تو پیدا ہوئی ہیں۔ اب حسن نے حکم دیا کہ تمام قیدی قتل کر دیے جائے اور بڑھیا نے چلا کر کہا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، ایک بھی نہ بچنے پائے۔ شہزادی منال ثنا نے اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ گرفتار ہے اور اس کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو وہ رونے لگی۔ اس نے پوچھا کہ بہن، تو جانتی ہے کہ یہ کون شخص ہے جس نے ہمارے ملک میں آ کر ہم پر فتح پائی اور ہمیں قیدی بنایا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ عجیب و غریب بات ہے، ہمیں اس شخص نے نیچا دکھایا ہے، اس کا نام حسن ہے اور خدا نے اسے ہم پر بھی حاکم بنایا ہے اور ہمارے تمام ملک پر بھی۔
उसी ने हमें और जिन्नों के बादशाहों को शिकस्त दी है। उसकी बहन ने कहा कि महज इस टोपी और डंडे की वजह से खुदा ने उसे तुम पर जीत दी है और तुम्हें नीचा दिखाया और गिरफ्तार किया है। अब मलिका को यकीन हो गया कि इसी वजह से उसने अपनी बीवी को छुड़ा लिया है और उसने अपनी बहन के आगे इस कदर हाथ जोड़े कि उसका दिल पसीज गया। शहजादी ने अपने शौहर हसन से कहा कि तू मेरी बहन को क्या सजा देना चाहता है? इस वक्त वो तेरे कब्जे में है, लेकिन उसने तेरे साथ कोई बुराई नहीं की है जिसकी तू उसे सजा दे। हसन ने कहा, यह काफी है कि उसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है। उसने जवाब दिया कि जो कुछ बुराई उसने मेरे साथ की उसमें वो मजबूर थी। मेरे बाप का दिल मेरे लिए पहले ही मेरी वजह से दुखा हुआ है। अगर मेरी बहन भी न रही तो उसका क्या हाल होगा? हसन बोला कि राय तेरी राय है, जो तेरा जी चाहे कर। ये सुनकर शहजादी मनाल सना ने हुक्म दिया कि सब कैदी आजाद कर दिए जाए और इसी तरह उसकी बहन भी। उसके बाद उसने बढ़कर अपनी बहन को गले से लगा लिया। दोनों रोने लगी और बहुत देर तक रोती रही। फिर मलिका नूरुल हुदा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, जो बुराई मैंने तेरे साथ की है उसका बदला न लीजिए। शहजादी मनाल सना बोली, बहन, तकदीर में यही लिखा था। दोनों तख्त पर बैठकर बातें करने लगी और मनाल सना ने अपनी भेड़ और बुढ़िया में भी मिलाप करा दिया और दोनों खुश हो गए। उसके बाद हसन ने उस लश्कर को जो लड़ने की खिदमत पे था रुखसत किया और जो फतह उन्होंने उसके दुश्मनों पर हासिल की थी उसका शुक्रिया अदा किया। शहजादी मनारुल सना ने अपनी बहन से वो सारी सरेगुज़िश्त बयान की जो उसे उसके शोहर हसन के साथ पेश आई थी और वो तमाम तकलीफें जो हसन ने उसकी खातिर उठाई थी, और कहा कि ऐसे कारनामे कौन कर सकता था और इतनी कुव्वत किसमें थी। महज खुदा की मदद थी कि वो हमारे मुल्क में आया, तुझे गिरफ्तार किया, तेरे लश्कर को मार भगाया और तेरे बाप मालिक अकबर को नीचा दिखाया जो तमाम जिन्नों के बादशाहों का बादशाह है। उसके हक में कमी करना जुल्म है। उसकी बहन बोली कि बहन, तेरा कहना सच है कि उसने इस कदर मुसीबतें झेली और बहन, ये सब तेरी खातिर थी। जब शहजादी मनाल सना ने अपनी बहन से हसन के औसाफ बयान किए और इसी तरह की बातों चीतों में सारी रात गुजार दी, जब सूरज निकला तो कूच की सोची और एक दूसरे से रुखसत हुए। मनाल सना बुढ़िया से भी रुखसत हुई क्योंकि वो उसके और अपनी बहन के दरमियान मिलाप करा चुकी थी। अब हसन ने जमीन पर डंडा मारा, वो किला पहुंचे और उन्होंने सलाम करके कहा, ये शुक्र है खुदा का कि उसने तेरा दिल ठंडा किया। आप बता तेरा क्या हुक्म है ताकि हम अपने पलक मारने से पहले बजा लाएं। हसन ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा तुम्हें नेक बदला दे। अच्छा, अब 2 बेहतरीन घोड़े हमारे लिए ले आओ। वो फौरन ले आए और उसके सामने कसे कसाए पेश कर दिए। एक पर हसन सवार हो गया और अपने बड़े बेटे को आगे बिठा लिया, दूसरे पर उसकी बीवी बैठ गई और छोटे बेटे को साथ ले लिया। मलिका नूरुल हुदा और बुढ़िया भी सवार हो गई और सब अपने अपने वतन को रवाना हो गए। हसन और उसकी बीवी दाईं तरफ और मलिका नूरुल हुदा बुढ़िया बाईं तरफ। पूरे 1 महीने तक सफर करने के बाद हसन और उसकी बीवी बच्चे एक शहर के करीब पहुंचे जिसके इर्द गिर्द बहुत से दरख्त और नहरें थी। दरख्तों के पास पहुंचकर वो घोड़ों से उतरकर सुस्ताने लगे। बेटे बातें कर ही रहे थे कि बहुत से घोड़े आते दिखाई दिए। उन्होंने देखकर हसन उठ खड़ा हुआ। उनसे मिलकर मालूम हुआ कि वो बादशाह हसून अर्ज काफूर और किला तयूद का मालिक है। हसन ने बढ़कर उसके हाथ चूमे और सलाम किया। बादशाह भी घोड़े पर से उतर पड़ा। दोनों दरख्तों के नीचे फर्श पर बैठ गए। बादशाह ने हसन को सलाम किया और उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी। उससे मिलकर बहुत खुश हुआ और कहा, हे हसन, अपनी सरेगुज़िश्त शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर। हसन ने सारी दास्तां सुना दी। बादशाह हसन को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कहने लगा कि बेटा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जज़ायर वाक़ जाकर लौट आया हो सिवाय तेरे। तेरा माजरा अजीब व गरीब है, लेकिन शुक्र है खुदा का कि तू सही सलामत रहा। उसके बाद बादशाह सवार हो गया और हसन से कहा कि तू भी सवार हो जा और मेरे साथ चल। हसन ने ऐसा ही किया। चलते चलते शहर पहुंचे। शाही महल में दाखिल होकर बादशाह उतरा। हसन और उसके बीवी बच्चों को मेहमान खाने में उतारा, जहां वो 10 दिन तक खाने पीने और खेल कूद में मशगूल रहे। फिर हसन ने बादशाह हसून से वतन जाने की इजाजत मांगी। उसने इजाजत दे दी। हसन और उसकी बीवी बच्चे सवार हो गए। बादशाह भी सवार होकर 10 दिन तक उनके हम रकाब रहा और उनसे रुखसत होकर लौट आया। हसन और उसकी बीवी बच्चे पूरे 1 महीने तक चलने के बाद एक बड़े गार के पास पहुंचे जिसकी जमीन पीतल की थी। हसन ने अपनी बीवी से कहा, तू उसे पहचानती है? उसने कहा, नहीं। हसन ने कहा, इसमें एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम अबू अल रवेश है। उनका मुझ पर बड़ा एहसान है क्योंकि उन्होंने मुझे बादशाह हसून से मिलाया था। हसन अपनी बीवी से शेख अबू अल रवेश का जिक्र कर ही रहा था कि वो गार में से निकला। उसे देखकर हसन अपने घोड़े पर से उतरा और उसके हाथ चूमे। शेख ने उसे सलाम किया और उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी और बहुत खुश हुआ। फिर दोनों बैठ गए
और हसन ने उसे वो सारी बातें बयान की जो उसे जज़ायर वाक़ में पेश आई थी। शेख अबुल रवेश ने पूछा, है हसन, तूने अपने बीवी बच्चों को किस तरह छुड़ाया? हसन ने डंडे और टोपी का किस्सा उसे सुनाया। शेख को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने कहा, ए हसन बेटा, अगर ये डंडा और ये टोपी ना होती तो तू अपनी बीवी बच्चों को छुड़ा ना सकता था। हसन बोला, ए मेरे आका, हाँ, वो बातें कर ही रहे थे कि किसी ने कार के दरवाजे पर दस्तक दी। शेख अबुल रवेश ने दरवाजा खोला, देखा कि शेख अब्दुल कुद्दूस हाथी पर सवार आया हुआ है। शेख अबुल रवेश ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया, गले लगाया और वो बहुत खुश हुआ और उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी। उसके बाद उसने हसन से कहा कि शेख अब्दुल कुद्दूस को भी अपनी सारी कहानी सुना दे। हसन ने सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी, यहाँ तक कि वो डंडे और टोपी के किस्से तक पहुंचा। जब हसन अपना किस्सा बयान करते करते डंडे और टोपी तक पहुंचा तो शेख अब्दुल कुद्दूस ने कहा, बेटा, अब चूंकि तू अपनी बीवी बच्चों को छुड़ा लाया है, डंडे और टोपी की जरूरत बाकी नहीं। इलावा अजी हमारी मदद से तू जज़ायर वाक़ तक पहुंचा है और मैंने अपनी भतीजियों की वजह से तुझ पर एहसान किया, लिहाजा मेहरबानी करके तू डंडा मुझे दे दे और टोपी शेख अब्दुल रवेश को। ये बात सुनकर हसन ने सर नीचा कर दिया। उसे इनकार करते शर्म आई। अपने दिल में कहा कि इन दोनों बुजुर्गों ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है और महज उन्हीं की वजह से मेरी रसाई जज़ायर वाक़ तक हुई है। अगर वो ना होते तो न मैं उस जगह तक पहुंचता, न अपनी बीवी बच्चों को छुड़ा सकता, न मुझे ये डंडा और ये टोपी मिलती। ये सोचकर उसने सर उठाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन ये मेरे आका, मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी का बाप मालिक अकबर फौज लेकर आ जाए और डंडे और टोपी के चले जाने की वजह से मैं उसका मुकाबला न कर सकूं। शेख ने हसन से कहा, बेटा डर नहीं, हम तेरी तरफ से उस जगह घात में लगे रहेंगे और जो कोई भी तेरी खुसर की तरफ से आएगा उसे तेरे पास न भटकने देंगे। तू मुतमिन रहे और किसी तरह का खौफ न कर। शेख की गुफ्तगू सुनकर हसन को शर्म आई और उसने टोपी शेख अबुल रवेश को देकर अब्दुल कुद्दूस से कहा कि मुझे मेरे वतन पहुंचा दे और डंडा ले ले। दोनों बुजुर्ग खुश हो गए और हसन को इस कदर माल दिया कि जिसका बयान नहीं हो सकता। 3 दिन ठहरने के बाद हसन ने सफर की इजाजत मांगी। शेख अब्दुल कुद्दूस भी उसके साथ सफर के लिए तैयार हो गया। जब हसन एक घोड़े पर बैठा और दूसरे पर अपनी बीवी को सवार कर दिया, शेख ने सीटी बजाई। जंगल में से एक बहुत बड़ा हाथी दौड़ता हुआ आ पहुंचा। शेख उस पर सवार हो गया। सब रवाना हो गए और शेख अबुल रवेश अपने गार के अंदर चला गया। शेख की रहबरी से वो आसान रास्तों और करीब के मोड़ों में से होकर चलने लगा। उसका वतन जितना करीब आता जाता उतनी ही उसे खुशी होती कि वो अब बीवी बच्चों को लेकर अपनी माँ से मिलेगा। उसने खुदा का शुक्र किया और उसकी इनायतों और मेहरबानियों का ममनून हुआ। इतने में उन्हें कुब्बा खिजरा, फवारा और सब्ज महल दिखाई देने लगे और जबल साहब भी दूर से नजर आने लगा। शेख अब्दुल कुद्दूस ने कहा, ए हसन, खुश हो, अब आराम ही आराम है। आज ही रात तू मेरी भतीजियों का मेहमान होगा। हसन और उसकी बीवी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने गुंबद के पास उतरकर जरा दम लिया और खा पी कर फिर सवार हो गए और महल के करीब पहुंचे। जब वो महल के पास पहुंच गए तो शेख अब्दुल कुद्दूस के भाई बादशाह की बेटियों ने निकलकर उनका खैर मुकद्दम किया। इसी तरह उन्होंने अपने चचा को भी सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और उनसे कहा, ए मेरी भतीजियों, मैंने तुम्हारे भाई हसन की मुराद पूरी कर दी है और उसकी मदद करके उसकी बीवी बच्चों को छुड़ा दिया है। लड़कियों ने बढ़कर हसन को गले लगा दिया, उससे मिलकर खुश हुई, उसकी खैरो आफियत पर उसे मुबारकबाद दी और नेत इस बात पर के उसकी बीवी बच्चे उसे मिल गए। ये दिन उनके लिए ईद का दिन था। अब हसन की छोटी बहन बढ़कर उसके गले से लिपट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। हसन भी ये ख्याल करके कि वो बहन से इतने दिनों जुदा रहा है, रो पड़ा। उसके बाद वो शिकायत करने लगी, जुदाई और फिराक के कितने सदमे उठाए हैं। हसन ने कहा, बहन, मैं इस मामले में तेरी बहनों से भी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। खुदा तेरी मदद करे और तुझ पर इनायत की नजर रखे। फिर उसने सफर के तमाम हालात शुरू से लेकर आखिर तक और सारी मुसीबतें जो उसने झेली थी, माँ उन वाकयात के जो सारी के साथ पेश आए थे और ये कि किस तरह उसने बीवी बच्चों को छुड़ाया, बयान किया और ये भी कहा कि उसे किस कदर खतरों का सामना हुआ, यहाँ तक कि उसकी साली उसे और उसकी बीवी बच्चों को ज़िबा कर डालने के लिए तैयार थी। उसके बाद उसने उसे डंडे और टोपी की कहानी सुनाई और कहा कि उन दोनों चीज़ों को शेख अबुल रवेश और शेख अब्दुल कुद्दूस ने मुझसे मांग लिया है और मैं तेरी खातिर मैंने उन्हें दोनों चीजें दे दी। लड़की ने उस पर हसन का शुक्रिया अदा किया और उसे उम्र दराज की दुआ दी। हसन ने कहा कि खुदा की कसम, मैं तेरी भलाइयों को हरगज नहीं भूल सकता तो तूने मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक की है। अब उसने हसन की बीवी मनात सना को गले लगा लिया और उसके बेटों को सीने से चिमटाकर कहा, ए मलिक अकबर की बेटी, क्या तेरे दिल में इतना कम रहम था कि तूने उसे उसके बच्चों से जुदा कर दिया और उसका दिल जलाया?
کیا اس سے تیرا یہ مقصد تھا وہ مر جائے؟ منال ثنا ہنس پڑی اور کہا خدا کا یہی حکم تھا، جو کوئی لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے خدا اس کے ساتھ پوری طرح پیش آتا ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے کھانا آیا، سب نے کھایا اور خوش ہوئے۔ اسی طرح کھانے پینے میں انہوں نے خوش و خرم 10 دن گزارے، اور جب 10 دن ہو چکے تو حسن نے سفر کی تیاری کی۔ اس کی بہن نے اس قدر مال و دولت اور تحفے تحائف اس کے ساتھ کر دیے کہ بیان سے باہر ہے۔ اس کے بعد اس نے حسن کو رخصت کرنے کی غرض سے اسے اپنے گلے اور سینے سے لگا لیا، اور حسن نے شیخ عبد القدوس کو ڈنڈا دے دیا، جس پر وہ بہت خوش ہوا، اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے لے کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اب حسن اور اس کے بیوی بچے سوار ہو گئے۔ لڑکیاں اپنے مہر سے نکل کر اسے پہنچا آئیں۔ 2 مہینے اور 10 دن تک جنگل بیاباں میں سفر کرتے کرتے حسن بغداد پہنچا، اور اپنے گھر کے چور دروازے پر پہنچ کر جو جنگل کی طرف کھلتا تھا دستک دی۔ وہ اتنے دنوں غائب رہا تھا کہ اس کی ماں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ رونے پیٹنے میں اس کے دن گزرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گئی، نہ کھاتی نہ پیتی، ہمیشہ اپنے بیٹوں کو یاد کرتی۔ اسے بیٹے کے واپس آنے کا کوئی آسرا نہیں رہا تھا۔ حسن کو اپنی ماں کے رونے کی آواز آئی، اور ماں نے اسے دروازے پر یہ کہتے سنا کہ اماں، خدا کی مہربانی سے ہم سب پھر مل گئے۔ حسن کی آواز پہچان کر ماں دروازے کی طرف بڑھی، لیکن ایک دل کہتا ہے کہ وہی ہے اور ایک دل کہتا ہے وہ نہیں ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا اور بیٹے کی بیوی بچے کھڑے ہیں۔ مارے خوشی کے اس نے ایک چیخ ماری اور گچ کھا کر زمین پر گر پڑی۔ حسن نے ہوش میں لانے کی کوشش کی اور وہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے حسن کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ اس کے بعد اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ سارا سامان اندر لے جائیں، اور وہ اندر لے گئے، اور ماں نے اپنی بہو کو گلے لگایا، اس کے سر اور دونوں پاؤں چومے اور کہا، اے ملک اکبر کی بیٹی، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں خدا سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تو اتنی مدت تک کیوں غائب رہا؟ اس پر حسن نے اپنی ساری کہانی شروع سے لے کر آخر تک سنائی۔ ماں نے زور سے ایک چیخ ماری اور گچ کھا کر گر پڑی۔ ہوش آیا تو بولی، بیٹا تو نے ڈنڈا اور ٹوپی ناک دے دی، اگر تو انہیں اپنے پاس رکھتا تو ساری دنیا کا بادشاہ ہو جاتا، لیکن شکر ہے کہ تو، تیری بیوی اور تیرے بچے سلامت ہیں۔ رات انہوں نے بڑی خوشی سے گزاری۔ صبح ہوئی تھی، حسن نے اپنے کپڑے بدل کر ایک نہایت نفیس پوشاک پہنی اور بازار جا کر غلام باندیاں کپڑے، گہنے، قالینیں اور قیمتی برتن خریدے، جن کا جواب بادشاہوں کے ہاں بھی نہ ہوگا، اور پھر مکان، باغ اور جاگیریں مول لی۔ اس کے بعد وہ اور اس کی اولاد، بیوی اور ماں خوب کھانے پینے اور مزے اڑانے لگے، زندگی بسر کرنے اور بڑے عیش و عشرت سے رہنے لگے، یہاں تک کہ مزوں کو کرکرا کرنے اور صحبتوں کو درہم برہم کرنے والی موت آ پہنچی۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ پہ ساری حکومت ہے، اور جو ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والی ہے اور کبھی مرتی نہیں۔ دوستو، یہاں تک آ کر یہ کہانی بالکل ختم ہو گئی۔ ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہی ہمارا حصہ بن جائے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔